First of all, my pranam to Anilisa Singh sir, my most favorite photo artist on earth. Next, sir, I want to my pranam to Mukesh Srivastav sir, Rohintan Mehta sir, Mukesh Little sir, whom I used to know by name only. My pranam to all the senior members of DCC and the members who were present here. Umesh Gognaji has started his journey as a freelance photographer in 1998. He has photographed many commercial and tourism assignments for his clients and government departments. Travel, landscape, and nature photography is his foremost passion. He has accomplished more than 250 workshops of photography till date. He has conducted workshops for Canon India as a mentor for long 7 years since 2008 to 2014. At present, he is the brand ambassador and member of Sony Alpha. Next, nowadays, his photography expeditions and masterclasses on astrophotography are very much popular. Sir, I am audible or not? Yes, you are very much audible. Okay, sir. He has spent a lot of time in documenting the cultural and architectural heritage of Rajasthan and the Himalayas. His work has been published in several books on these subjects. Rajasthan's royalty, fairs, festivals, and colors are framed in the coffee table books of Pali, Jalore, and Jhalawar by him. Some other books are lined up to be published. Also, he is the founder, member, and mentor and jury at Camerana Academy. He has been honored with the Lifetime Achievement Award by Jaipur Photographers Club. Also, he has been honored by the Lifetime Achievement Award for contributing to education in photography by Jodhana Photojournalist Society. He has been honored by Government of Rajasthan for contributing to education in photography by Margaret Alva. He has also been the part of jury for a number of photography clubs, colleges, and schools. He has conducted all over 250 photography workshops all over India. Last but not the least, he is the guest faculty in Allahabad University since 2008 to 2019, Central University of Bihar, BITS Pilani Photography Club, and many more. Pranam, sir. It's my privilege. I am saying some words on behalf of you, and I am thankful to Mukesh ji also. Sir, I am handing over the mic to you. Thank you, Biplab, very much. Friends, because of some issue with the power supply, we are changing the sequence a little bit. In the end, we have to honor our guest tonight, Umesh Gognaji, with associateship of Dhanbad Camera Club. So that I have preponed it. And just now I'll request our chief advisor, Sri Anil Rishal Singh sir, to honor him. Our very prestigious distinction of associateship of Dhanbad Camera Club. Over to Anil Rishal Singh sir. Thank you, Mukesh ji. I am sharing my screen. Yes, wait, sir. Wait. Kindly, it is showing host has disabled participant. Yeah. Wait. Kindly allow me. Yeah. Wait, sir. वो हम भी करना भूल गए थे. कोई बात. That's fine. अंग्रेज जी को भी कर दिए, आपको भी कर देते हैं. Yes, sir. You can share your screen. Yes, I am sharing my screen now. Can you see it? Yes, sir. So, for the services, his contribution in the science and art of photography, Shri
Umesh Gogna ji is being conferred with the associateship of the Dhanbad Camera Club. And I thank Dhanbad Camera Club for giving me this privilege to confer this honor to Umesh Gogna ji. So Umesh Gogna ji, kindly accept the honor associateship of Dhanbad Camera Club by Dhanbad Camera Club. Big clap. Thank you sir, thank you very much, and it's a great honor for me. मतलब मैं ऐसा नहीं है, मैं बहुत छोटा फोटोग्राफर हूँ, इस लायक तो नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों ने नवाजा है तो मैं जरूर इसको स्वीकार करता हूँ। आप कितने छोटे हैं हम जानते हैं, आप मत बताइए हमको। जानते भी नहीं है सर, हम लोग देखा भी है और महसूस भी किया है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने तो देखा भी है और महसूस भी किया है कि आप कितने छोटे फोटोग्राफर हैं और आप कैमरा को यूं ही क्लिक नहीं करते हैं। एग्जैक्टली, थैंक यू सर, थैंक यू। और सबसे बड़ी बात, बहुत अच्छे फोटोग्राफर तो हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं। वो तो नंबर 1 सर। जी 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 जी। So I stop sharing my screen now, Mukesh ji. Yes sir. And handing over to you. Yes sir, thank you very much sir. Friends, सर एक बार फिर आप दिखाएंगे सर, हम लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया। एक बार फिर दिखा दे सर, वो स्क्रीनशॉट जरूरी है। बिल्कुल, वो हम लोग गपशप में भूल गए। Yes sir, done. Okay. So friends, now this is time for me to visually introduce our chief guest tonight, Sri Umesh Gogna ji. Let me share my screen. I think my screen is visible to all. Yes, it is. Yeah. Although I belong to the state of Bihar, but I have settled in Rajasthan. First of all, I made a small house in Jaipur. Then finally, I settled in Ajmer. So when I was visiting so many places in Rajasthan, everywhere I was hearing the name of Umesh Gogna. So I heard his name, I can say since 2006. But the opportunity, I got it in 2012. When there was a photo contest in Pushkar Fair. I think that was the first photo contest held in the Pushkar Fair. And then I participated in that contest without knowing that who is the jury. These are the 5 or 6 images I submitted. And then finally, this image got the first prize, and the jury was Umesh Gogna. So from that day, I knew him. Then I met him in Jaipur also. And before I met him in Jaipur, actually, one of my friend, Rajiv Kashyap from Ludhiana, he used to talk very high about him. So when I met him in Jaipur in my small house, then we interacted along for a long time. And then this is the receiving the certificate and the memento from the, I think, collector. I think he knows very well. And then this is the certificate. So that was the first introduction with Umesh Gogna ji. Now I will share the magical word of Umesh Gogna ji. हम इनको हमेशा बोलते हैं कि ये जादूगर है प्रकृति के, और इनके कुछ चुनिंदा इमेजेस को हम शो करेंगे, दिखाएंगे आपको। इनके इमेज में खासियत है कि जो नेचर को बाय यूजिंग ऑल द टेक्निकल स्किल ऑफ कैमरा एंड हिज ओन विजुअलाइजेशन, द वे ही कैप्चर्स ए फ्रेम, इट इज फैंटास्टिक। जैसा हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं हम उमेश जी, कि पहले हम लोग देखते थे पिक्चर्स नेशनल ज्योग्राफी का, तो हम लोग सोचते थे कि यार ये लोग किस कैमरे से फोटो खींचते हैं कि इतना इनका सारे पिक्सल शार्प आते हैं। So that technique he has developed, and we can see this image. Every pixel is crystal clear and sharp.
Just a minute. Again, this is another nature picture by him. It's a fantastic. This is one of the most favorite picture of Umesh Gugnaji. And most importantly, his I can say balance of color is fantastic in his every nature image. It looks so natural. So this is a fantastic milky flow of water. Oh, I think this is panorama, Umeshji. Yes, 12 or 13 images is still panorama. This is also fantastic nature image. The details of the sand dunes is fantastic. ये तो एस्ट्रो के, he is the master of astrophotography, and rather during this trip of Janskar Valley, when we'll see his presentation. Actually, Milky Way, I also learned, and we all learned from him only, and he was our teacher for doing that. You can say travel plan, and it is a fantastic. He has got a wonderful technical knowledge of capturing astro landscape. This is another nature. See, we can see every pixel from the left top to right bottom. Every pixel is crystal clear. Thank you very much. This is all about him. So now, let us not waste our time, and we should go for the presentation by our guest tonight, Sri Umesh Gugnaji, because we have to see a lot, and you can say every frame of Janskar Valley, because today we'll be watching the beauty of Janskar Valley through his visualization and lens. So every frame of Janskar Valley is wonderful, amazing. So now I'm handing over to Umesh Gugnaji, and you can share your screen and start your presentation. Umesh. Thank you, Mukesh ji. Thank you, Anil ji. Thank you, Rohinton ji, and everyone जो यहाँ पे हैं. सर, हम लोग फोटोग्राफर हैं. सब अपनी अपनी नज़र और अपनी अपनी नॉलेज के साथ में जो आउटपुट निकालते हैं वो उनका बेस्ट होता है. किसी को कुछ चीज अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है. मैं लैंडस्केप एस्ट्रो करता हूं तो जरूरी नहीं कि वो हर किसी को अच्छा लगे, क्योंकि आप लोगों को नेचर पसंद है, आप लोग इसलिए उन इमेजेस को पसंद करते हैं. अगर आप कहेंगे कि किसी पोर्ट्रेट फोटोग्राफर को मेरी इमेजेस पसंद नहीं आ जाए, तो ऐसा नहीं है. हर आदमी की लाइकिंग होती है, और नेचर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ज्यादातर लोगों के क्लोज टू हार्ट होता है. दैट्स वाई ये थोड़ा सब्जेक्ट लोगों के करीब रहता है. लेकिन ऐसा नहीं है. मैं आपको सिर्फ छोटी सी चीज इनपुट देना चाहूंगा कि नेचर मैं शूट इसलिए करता हूं क्योंकि मैं खुद नेचर के करीब रहना चाहता हूं. अदरवाइज जो मेरा फोटे है, जो मैं शूट करता हूं, मैं इंडस्ट्रियल फोटोग्राफर एंड कमर्शियल फोटोग्राफर हूं, एंड लाइटिंग क्रिएशन इज माय मेन ओन, जो मेरा क्रिएशन रहता है कहीं पे भी. और क्योंकि मैं फिल्म के जमाने से फोटोग्राफी कर रहा हूं, तो उस जमाने के अंदर आपको भी मालूम होगा कि 100-200 ISO की फिल्म के ऊपर हमें लाइटिंग सिस्टम को क्रिएट करना पड़ता था हर जगह पे. तो एज ए फोटोग्राफर हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा एक ही चीज इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है लाइट. चाहे वो नेचर हो, चाहे वो आर्टिफिशियल लाइट सोर्स हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो पोर्ट्रेट हो, किसी भी तरीके की फोटोग्राफी में लाइटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट की फैक्टर. एंड कॉम्पोजिशंस, तो अनिल जी के हम कॉम्पोजिशंस देखते हैं, और कितने खतरनाक कॉम्पोजिशंस होते हैं कि हम लोग अपनी आंखों के सामने से वो कब निकल जाती है चीजें और हम उनको देख भी नहीं पाते. तो आर्ट ऑफ सीइंग वाला जो बात है, वो एक्सपीरियंस जो अनिल जी के पास में, वो हम लोगों के पास में इतना नहीं है. धीरे धीरे कोशिश कर रहे आएगा. लेकिन हाँ, लाइटिंग का आज 25 सालों से क्रिएशन करते करते हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा हम लोग लाइटिंग की तरफ, मतलब परफेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं. और ये कोई लिमिट नहीं है. मैं ये जानना, मतलब मैं कहना चाहूंगा कि सीखने की कोई लिमिट नहीं है. हम लोग रेगुलरली सब हर वक्त सीखते हैं. मैं आज भी सीखता हूँ. अभी रिसेंट ट्रिप मेरा
लाइफ का सबसे मतलब 25 सालों से मेरा सपना था एक जगह जाने का, जो मैं नहीं जा पा रहा था। और जब मैंने मार्च में उसकी डेट अनाउंस करी एज पर एस्ट्रो कैलेंडर, तो बहुत सारे लोग मेरे साथ जाने वाले थे। और आप सरप्राइज रह जाएंगे कि 2 मई को, जब 4 मई को मेरे को जाना था, सब लोग बैकआउट कर गए, एक भी जना मेरे साथ में नहीं था। एंड फाइनली मैं अकेला ही चल दिया, और मैंने अपनी लाइफ का सबसे हार्डेस्ट ट्रैक, तपोवन ट्रैक, और वो करके मैं आया हूँ। और अभी परसों ही मैं वापस लौटा हूँ। और जो चीज सोची थी, जो सोच के विजुलाइज करके गया था कि मेरे को ये शॉट लेना है, लकीली वो शॉट मेरे को मिल गया। तो ये एक छोटी सी प्लानिंग के साथ में काम करने की आदत जो हमने डाली है, उसका बेनिफिट है। और लोग कह रहे थे जो साथ जाने वाले कि आप डेट शिफ्ट कर दीजिए, तो मैंने उनको एक ही बात बोली थी, सब कुछ हो सकता है, डेट शिफ्ट नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा मेन एम घूमना नहीं है, मेरा मेन एम फोटोग्राफी करना है। और जो फोटो मेरे को 7 या 8 तारीख को मिलेगा, वो 7 और 8 मई को ही मिलेगा, उसके अलावा उसका कोई चांस नहीं है। तो इस तरीके से हमने भी ये सारी चीजें सीखी है प्लानिंग के बारे में। तो आज जो मेरे को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है मुकेश जी ने झंस्कार के बारे में आप लोगों को बताने की, तो मैं आपको छोटा सा उसके बारे में एक चीज बोलना चाहूंगा कि झंस्कार, जब मैं 2001 में पहली बार लद्दाख गया था, तब मैं उसके बारे में सुन चुका था कि झंस्कार एक जगह है जो कि बहुत रिमोट प्लेस है, जहाँ पे कल्चर अभी भी बहुत ज्यादा बाकी है। लद्दाख में काफी सारा मॉडर्नाइजेशन हो चुका है, लेकिन वहां पे अभी नहीं हुआ है। तो हम लोग उसके बारे में सुनते थे, वहाँ की मोनेस्ट्रीज के बारे में सुनते थे, लेकिन कभी जाना नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उस जमाने में वो बहुत रिमोट था। अभी भी, इनफैक्ट अभी भी काफी रिमोट एरियाज में से वो काउंट होता है, और रोड्स भी इतनी अच्छी नहीं होती थी। तो 2013 में मेरे को पहली बार झंस्कार जाने का मौका मिला मेरे 2 फ्रेंड्स के साथ में। और उस वक्त मैंने एक पूरा लद्दाख को एक्सप्लोर करने का रूट बनाया था, और वो मेरा ट्रिप था 4600 किलोमीटर्स का, 16 डेज का मेरा वो ट्रिप था, जिसके अंदर मैं जयपुर से चल के झंस्कार से लेके इवन लद्दाख के भी रिमोट एरियाज को हम लोग पूरा एक्सप्लोर करके आए थे। तब जाके मेरे को झंस्कार की थोड़ी नॉलेज मिली थी। फिर उसके बाद में 2018 में आई वॉज रेड्डी हिमालय जो रैली होती है उसका ऑफिशियल था। उस रेड्डी हिमालय रैली के अंदर जब मैं गया, तब मेरे को झंस्कार में ही मेरी ड्यूटी लगी थी, तो मेरे को उसको और अच्छे से जानने का मौका मिला। लेकिन कभी भी मैं उसके एक्सपीडिशन को, मतलब मैं खुद तो शूट कर रहा था, लेकिन मैं एक्सपीडिशन नहीं लेके जा पा रहा था। सिर्फ एक ही रीजन था, क्योंकि ओनली वन, एक ही रास्ता उसका होता था जाने का, और उस वजह से वहां पे जाने के लिए हमको कम से कम 16-17 दिन चाहिए होते थे अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए। और जो पार्ट आज वहां का सबसे पॉपुलर है, जिसको कि हम माउंट गौम्बो रंजन बोलते हैं, जो एक सेक्रेड माउंटेन है, वो ट्रैकिंग वाला फील्ड हुआ करता था। वहां पे सिर्फ ट्रैकर्स जा सकते थे, नॉर्मली कोई भी कार्स नहीं जा सकती थी। तो फाइनली जब 2019 में मेरे को ये मालूम चला कि एक 4x4 गाड़ी के लिए रोड बन रहा है, तो 2020 में जब लॉकडाउन खत्म हुआ, जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, मेरा पहला एम यही था कि मेरे को ये एरिया एक्सप्लोर करना है, बिकॉज आई हैव 4x4 व्हीकल। तो मैं वो हिम्मत जुटा पाया। एंड 2020 के अंदर लॉकडाउन जस्ट खत्म होने के बाद में, अक्टूबर के अंदर, कोविड टाइम में ही मैं वहां पे गया, और मैंने पूरा जो माउंट गौम्बो रंजन के यहाँ पे जाके एक्सप्लोर करके एंड पूरा रिसर्च करके आया। क्योंकि एक छोटी सी आदत रही है कि अगर मैं किसी को अपने साथ लेके जाऊं, तो पहले उस जगह की नॉलेज मेरे को जरूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं भी उनके साथ पहली बार जाऊं, तो ऐसा ये मैं नहीं कर सकता। तो इसलिए मैंने पहले पूरा रेकी किया, एंड देन फिर अनिल जी से बात हुआ, मुकेश जी से बात हुआ, इन्होंने बोला कि एक आपको चलना है। तो इन्होंने लद्दाख के लिए बोला था मेरे को, लेकिन मैंने बोला सर लद्दाख तो सारी दुनिया देखती है, हम आपको झंस्कार दिखाएंगे। प्लीज हैरी पॉटर जी का माइक ऑन है। एक मिनट रुकिए, लेट मी म्यूट सम पीपल। यस, कैरी ऑन। तो वहां पे जब हम गए, सर मेरा स्क्रीन शेयर हो गया? हाँ हाँ ठीक है। तो जब वहां पे हम लोग गए, तो मैंने देखा कि जो झंस्कार आप लोग, इन लोगों के लिए बेहतर रहेगा। तो मैंने इनको सजेस्ट किया, नहीं आपको मैं झंस्कार लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरे को मालूम था इन सबके टेस्ट क्या है। एस्ट्रो है, शेप्स हैं, पैटर्न्स हैं, तो हर
फोटोग्राफर के अपने अपने टेस्ट होते हैं, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक चीज थी कि मैं इन लोगों को लेके जा रहा हूं तो और कहीं और ज्यादा एक्सपर्ट होना चाहिए मेरे को इस एरिया का। तो मैंने एक अगस्त में, मतलब इनका ट्रिप सितंबर में प्लान किया था बिकॉज ऑफ वहाँ का जो वेजिटेशन वगैरह है। तो अगस्त में मैंने एक ट्रिप और प्लान किया, एंड जो मुकेश जी की ट्रिप, अनिल जी की ट्रिप से जस्ट एक महीना पहले मैंने एक ट्रिप और किया, ताकि और ज्यादा परफेक्शन आ जाए और ज्यादा इफ एंड बट्स के बारे में मालूम चल सके। तो फाइनली जब इनका ट्रिप हुआ तो वो और ज्यादा परफेक्शन के साथ में हुआ। तो वो थोड़ा सा बस वही है कि रैकी कर जितना हम लोग करते रहते हैं तो उसके बारे में चलता रहता है। तो आज मेरा जो छोटा सा ज्यादा बड़ा प्रेजेंटेशन नहीं है, जंस्कार एक्सपीडिशंस के ऊपर है, एंड जंस्कार क्या है, क्यों ये इतना पॉपुलर है, क्यों हमको यहाँ पे जाना चाहिए, इन सब बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ। तो जंस्कार एक्सपीडिशन जो था, वो पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, ये खाली लैंडस्केप वालों के लिए नहीं है, ये ट्रेवल वालों के लिए भी है, लैंडस्केप वालों के लिए भी है, एस्ट्रो फोटोग्राफर्स के लिए भी है। यहाँ पे कोई भी फोटोग्राफर जा सकता है। अगर किसी को लैंडस्केप का शौक नहीं है, ओनली ट्रेवल फोटोग्राफी का शौक है, तो भी जंस्कार जाया जा सकता है। किसी को पोर्ट्रेट्स का शौक है तो वो भी जंस्कार जा सकते हैं। अगर किसी को लैंडस्केप का शौक है, खाली लैंडस्केप का शौक है, वो भी जा सकता है, और खाली एस्ट्रो वाले भी जा सकते हैं। तो पहली चीज, वाई जंस्कार। जंस्कार का सबसे बड़ा रीजन क्या है, मैं आपको उसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, और मैं उसको एक बार मैप के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सबसे पहली चीज, जंस्कार एक तहसील है तो कारगिल डिस्ट्रिक्ट की, और वो साउथ वेस्ट ऑफ लद्दाख यूटी के अंदर आता है, साउथ वेस्ट में आता है। और उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है वो पदम है, जो फॉर्मर कैपिटल ऑफ जंस्कार थी। तो पदम वहां का मेन टाउन है। बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा टाउन है, लेकिन फिर भी मतलब पूरे जंस्कार में सबसे बड़ा टाउन वही है। तो ये आप जब आप देख रहे होंगे, ये यहाँ पे लेह है, और ये पूरा जो रेड मार्किंग है ये हमारा जंस्कार एरिया है, जो कि साउथ वेस्ट। और इसके यहाँ पे जो नीचे आप देख रहे हैं, ये उदयपुर जो और केलंग जो लिखा हुआ आ रहा है, और ये जो बाउंड्री आ रही है, जो मेरा माउस आप देख रहे होंगे, ये हिमाचल प्रदेश है, ये पूरा हिमाचल प्रदेश है। और यहाँ से ये जम्मू कश्मीर लगता है, किश्तवाड़ वाला एरिया लगता है। तो ये बिल्कुल अलग तरीके का इसका टेरेन होता है। उसके पीछे का रीजन है क्यों होता है, मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअल में हमारे जो हिमालयाज हैं वो 3 पार्ट में बटे हुए हैं। पहला हिमालयाज है शिवालिक हिमालयाज, जो कि हम लोग जो फुटहिल से जैसे एंटर करते हैं, जैसे आपने शिमला देखा होगा, पटनी टॉप देखा होगा आपने, ये जो हमारे कौसानी, रानी खेत, ये सब देखे होंगे। ये फुटहिल फर्स्ट हिमालयाज हैं, जिनके अंदर काफी सारे ट्रीज और सब ट्री लाइन होती है। स्नो इतनी नहीं होती है, स्नो होती है तो पिघल जाती है। उसके बाद में कोर हिमालयाज आते हैं। कोर हिमालयाज मतलब जो मेन हिमालयन पीक्स है हमारी, जो स्नो वाली जो पीक्स हैं, एंड जो सबसे ज्यादा हाई मतलब माउंटेन्स है, वो आ जाते हैं। एंड उसके बाद में तिब्बती टाइप का पठार आ जाते हैं, जिनको कि हम ट्रांस हिमालयास बोलते हैं। ट्रांस हिमालयास के अंदर बर्फ ज्यादा नहीं गिरती है, इसलिए वो डेजर्ट टाइप का इलाका होता है, बिल्कुल डेजर्ट टाइप का इलाका होता है। तो वहां का टेरेन बिल्कुल अलग होता है। तो जब आप लद्दाख जाते हैं, जब आप लद्दाख में जाते हैं, तो वो पूरा ट्रांस हिमालयन रेंज होती है, पूरी कंप्लीट, उसमें कोई भी हिमालयन रेंज नहीं होती है, जिसकी वजह से आपको कंप्लीट डेजर्टेड लुक मिलता है आपको किसी भी टेरेन का। लेकिन जो पदम है, जो जंस्कार है, उसकी सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है कि उसके जब आप उस वैली में एंटर करते हैं, तो आपको, जैसे अगर आप सपोज करिए कारगिल साइड से अगर एंटर करते हैं, ये इधर कारगिल है, और इस साइड से जब आप एंटर करते हैं, तो आपका लेफ्ट साइड तो ट्रांस हिमालय होता है, और राइट साइड आपका कोर हिमालय होता है। तो राइट साइड में आपको ग्लेशियर्स, बड़े बड़े ग्लेशियर्स, बड़ी बड़ी स्नो पीक्स, हैवी स्नो पीक्स आपको दिखती हैं, जो कि लद्दाख में आपको इस तरीके से नहीं दिखेगी। और जब आप पहले, जब हम, मैं एक मिनट शेयर करता हूँ, ये वाला, ये देखिए, पहले जब हम ये यहाँ से मनाली से, ये एक लद्दाख का रास्ता था जो कि बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है। तो जैसे हम ये धारचा क्रॉस करते थे, हम लोग ट्रांस हिमालयन रेंज में एंटर कर जाते थे, ये पूरा ट्रांस हिमालयन रेंज आ जाती थी। और यहाँ से एक पैदल ट्रैकिंग रूट चला करता था, जो कि माउंट गौनबो रंजन और जो फुक्तल मोनेस्ट्री, वहां पे होते हुए पदम जाता था। और ये बहुत फेमस ट्रैक हुआ करता था, पैदल फॉरेनर्स बहुत ज्यादा करते थे इसको, साइकिल वाले फॉरेनर्स भी बहुत ज्यादा करते थे। लेकिन क्योंकि आपको मालूम है कि चाइना की वजह से हमारी रोड्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पे बढ़ती जा रही है, तो अब यहाँ से पदम से एक डायरेक्ट लेह की रोड बन रही है, और पदम से ये धारचा को कनेक्ट कर दिया गया बाय रोड। तो हमारे पास एक ऑल्टरनेट, पहले ये जो मनाली टू लेह था, अब एक ऑल्टरनेट लेह का रूट और हो गया, जो कि धारचा से पदम और पदम से निम्मू होते हुए
सीधा ले जाएगा। और अभी एक टेम्परेरी रास्ता बनाया है जो कि लिंक शेड होते हुए लामायूरू जाता है। तो ऐसे कई सारे रास्ते अब बन चुके हैं। और पदम, और इसके पहले पदम की सिर्फ एक ही एंट्री हुआ करती थी, वो होती थी कारगिल से। जैसा कि मैंने आपको बताया 2019 से पहले अगर हमें पदम जाना है तो आप चाहे श्रीनगर से जाइए चाहे लेह से जाइए, आपको पहले कारगिल जाना होता था और कारगिल से ही अंदर एंटर होके पदम में आना होता था। लेकिन अब क्योंकि ये रास्ता हमको मिल गया है तो हम एक सर्किट का प्लान कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम इसको ज्यादा बेहतर ढंग से कर पाते हैं। तो डिफरेंट रूट्स के प्रोज एंड कॉन्स है वो मैं आपको पहले शेयर करूंगा, क्योंकि नेचुरली ब्यूटी तो मैं आपको दिखा दूंगा, फिर आपकी जाने की इच्छा होगी। तो बिना प्लानिंग के और बिना जाने किसी जगह पे जाना बहुत रिस्की होता है। तो ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो सबसे पहली चीज, लोगों के पास टाइम बहुत कम होता है, तो इस वजह से लोग सबसे ज्यादा जाना चाहते हैं फ्लाइट से। फ्लाइट के लिए दो ही जगह है, एक तो लेह है और एक श्रीनगर है। अगर आप श्रीनगर फ्लाइट से उतरते हैं तो वहां से आपको कारगिल होते हुए आप पदम जा सकते हैं। और अगर आप लेह उतरते हैं तो भी मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप कारगिल होके जाएं। लोग आजकल इस शॉर्टकट से जाते हैं जो कि लिंक शेड वाला रास्ता है, जो कि टफ भी है और रिमोट भी है और थोड़ा सा एल्टीट्यूड वाइज भी ज्यादा है। तो मैं इसको सजेस्ट कम करता हूं। ये रिटर्न में जरूर सजेस्ट करूंगा। जाते वक्त मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि चाहे आप लेह से जाएं चाहे आप श्रीनगर से जाएं, आप हमेशा कारगिल से ही एंटर करें। ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर एक्लेमेटाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा। अब बाय रोड बहुत सारे रास्ते हैं। कुछ लोग हैं जो आज की तारीख में बहुत ज्यादा एडवेंचरस हैं, वो डायरेक्ट मनाली जाते हैं, मनाली से डायरेक्ट धारचा होते हुए सीधे पदम में एंटर कर जाते हैं। नॉर्मली देखिए, अगर आप एक अच्छे फोटोग्राफर हैं और फोटोग्राफ क्लिक करना चाहते हैं तो आपका हेल्दी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप हेल्दी नहीं रहेंगे तो आपका न तो दिमाग चलेगा क्रिएटिविटी में, और अगर आप बीमार हो गए तो आप कोई भी अच्छी फोटोग्राफी नहीं कर पाएंगे। सबसे ज्यादा रिस्की रूट यही है। ये मनाली से जो डायरेक्ट धरचा होते हुए अगर हम पदम जाते हैं, ये हाईएस्ट रिस्की रूट है, क्योंकि आप विदाउट एक्लेमेटाइजेशन जाते हैं। मनाली मात्र 2000 मीटर पे है और दारचा तक काफी ग्रीनरी होती है, इस वजह से ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल कम नहीं होता है। और वहां से जब आप इस डायरेक्टली इस बेल्ट में एंटर करते हैं तो एक्यूट माउंटेन सिकनेस होने के आपको बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। जरूरी नहीं कि आपको हो, लेकिन चांसेस है कि आपको हो सकती है। लेकिन अगर आप बाया श्रीनगर कारगिल होते हुए धीरे धीरे इस टेरेन में एंटर करेंगे, चाहे वो ले से करिए चाहे कहीं से भी करिए, एक ही थंब रूल है, ग्रेजुअली आप अपनी हाइट को इंक्रीज कीजिए, हर हाइट पे आप अपनी नाइट को स्पेंड कीजिए, तो ऑटोमेटिकली आप उस जो प्रॉब्लम से बच जाएंगे और हर जगह आप एक अच्छी फोटोग्राफी करते हुए पहुंच सकते हैं। तो जो मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अगर किसी को साथ लेके जा रहा हूं तो उनको पूरा एक्लेमेटाइज करा के लेके जाऊं। तो मैंने अपना रूट जो बनाया वो 13 डेज का था। हम लोग पहले दिल्ली से चले, दिल्ली से हम लोग सीधे पहले पटनी टॉप पहुंचे। पटनी टॉप ये देखिए, यहाँ पे ये सबसे पहले पटनी टॉप पहुंचे। पटनी टॉप से हम लोगों ने फर्स्ट नाइट स्टे किया। तो ये ऑलमोस्ट 2000 मीटर का हमारा नाइट स्टे हुआ। हमने यहाँ पे आराम से थोड़ा वॉक किया, 3 किलोमीटर वॉक। आप सोचिए कि कितना ज्यादा जुल्म किया मैंने अनिल जी, गिरीश जी पे, कि हम लोग 17 घंटे की 15 घंटे की ड्राइव करके पहुंचे हैं और फिर हमने 3 किलोमीटर वॉक भी किया यहाँ पे। लेकिन उसका सिर्फ एक ही रीजन था, ताकि हम बेटर एक्सरसाइज हो जाए और वहां पे एक बहुत फेमस नाग मंदिर है उसके दर्शन कर सके। फिर वहां से हम लोग मॉर्निंग में सुबह चले, हम लोग आ गए सोनमर्ग। अगेन 2600 मीटर के एल्टीट्यूड पे आने के बाद में धीरे से ग्रेजुअली हुआ, हमारा एल्टीट्यूड बढ़ाया। वहां पे हमने थोड़ा सा ट्रैक किया, हम लोग बेटर एक्लेमेटाइज हुए। फिर वहां से हम लोग द्रास आए, द्रास में हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया, लंच किया। उसके पहले अनिल जी की फेवरेट जगह थी, वहां पे उन्होंने काफी फोटोग्राफी करी और वो करीब करीब 3300 मीटर का एल्टीट्यूड था। और उसके बाद में हम लोग एंटर कर गए कारगिल होते हुए सूरू वैली में। सूरू वैली एक तरह से झंस्कार का ही पार्ट है। तो वो वहां पे सबसे पहला विलेज आया जिसको बोलते हैं पुर्तिकचे। फिर पुर्तिकचे में हमने हमारा 2 नाइट्स स्पेंड किया, क्योंकि वो 3200 मीटर के आसपास था। फिर वहां से हम लोग परकाचिक होते हुए रंगदुम आए। रंगदुम 4000 मीटर का एल्टीट्यूड था। अगेन फिर हमने वहां पे 2 नाइट स्पेंड किया। एक दिन में हम लोग पेंजिला पास 4500 मीटर जाके दरंगद्रुम ग्लेशियर देख के वापस आए। और फिर वापस से रंगदुम से हम लोग सीधे पदम आए, जो कि 3600 मीटर की एल्टीट्यूड पे आया। तब तक हम ऑलमोस्ट एक्लेमेटाइज हो चुके थे, ऑलमोस्ट बहुत अच्छे से। एंड हमारे को किसी को भी न तो ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम थी न कुछ प्रॉब्लम थी। फिर वहां से हमने सेकंड डे जांगला फोर्ट गए, फिर वापस आए।
फिर ये बरदान मोनेस्ट्री आई। अब आप ये देख रहे हैं ये जो लाइन चल रहा है ये पूरा कोर हिमालयास चल रहा है, और ये वाला जो एरिया है ये ट्रांस हिमालयास है, ठीक है। फिर वहां से हम लोग पुरने आए, पुरने से हमने फोक्तल मोनेस्ट्री का ट्रैक किया, फिर हम लोग यहाँ पे माउंट गॉनबोरंजन आए, यहाँ पे हमने पूरा का पूरा हमारा कैंपिंग सेटअप जो हमारे गाड़ी में था हमने उसको यूज किया, और फिर शिंकुला पास होते हुए जो कि सबसे खराब रोड है, ये यहाँ से जब बरदान मोनेस्ट्री क्रॉस कर लेते हैं, रेरू आता है जगह, वहां के बाद पूरा रोड बहुत ही खतरनाक ऑफ रोड है, काफी डर्ट, और मतलब 4x4 की काफी जगह यूज हमको करना पड़ता है। शिंकुला पास आके जब हम धरचा होते हुए मनाली आए, फिर हमने 2 दिन मनाली में स्पेंड किए, एंड देन फिर हम लोगों का ट्रिप खत्म हुआ। तो ये एक इस छोटे से एक्सपीडिशन के बारे में मैंने आपको शेयर किया है। अब मैं आपको इसको विजुअली थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँ। तो जब सबसे पहले हमने अपना कैमरा जो निकाला वो सोनमर्ग से निकाला, सोनमर्ग से नहीं, श्रीनगर में हम लोग 10 मिनट 15 मिनट के लिए हम लोग डल लेक रुके थे। एक ही एम था कि जिन्होंने नहीं देखी है वो भी देख ले, और बाद में अपना पूरा प्रॉपर प्लान के साथ में श्रीनगर पहुंचे। तो अब फोटोग्राफर है, थोड़ी सी देर भी मिले तो कुछ ना कुछ तो फ्रेम बनाने चाहिए, तो हमने बस 10 मिनट 15 मिनट में 2 फ्रेम मिले मेरे को, और 2 फ्रेम मैंने बना सका, ज्यादा फ्रेम नहीं बना सका क्योंकि टाइम हमारे पास में कम था। उसके बाद हम लोग सोनमर्ग, अब मैं सोनमर्ग में कई बार गया, 2 बार गया हूँ, तो ये कुछ इमेजेस अगस्त की भी है, कुछ इमेजेस बाद की भी है। तो ये अगस्त की इमेज है मेरी, क्योंकि अगस्त में वहां पे अलग तरीके का एनवायरनमेंट रहता है, और ये वहां का एक फ्रेम मैंने क्रिएट किया था। जब भी कोई नया लेंस आता है तो मैं कोशिश करता हूँ मैं उस लेंस के हिसाब से फोटोग्राफी करूँ। तो ये इस समय मैंने 14mm 1.8 वाला लेंस परचेज किया था, तो मैंने कोशिश की कि मैं अपने टोटल जो फ्रेम्स है वो 14mm के हिसाब से डिजाइन करूँ। तो ये दोनों ही 14mm के शॉट्स हैं। ये भी अगेन 14mm का शॉट है सनसेट के टाइम पे, अगेन 14mm। मैं सिर्फ एक ही लेंस लेके निकला था, दूसरा लेंस मैं अपने होटल में छोड़ गया था। तो ये एक आदत बना रखी है कि ज्यादा लालच नहीं करना है कि मैं ये छोड़िया है, जो है उसी से फोटोग्राफी करने की आदत डालने की एक हैबिट बनाइए, ताकि हम लोगों का विजुअल बेहतर हो सके। ये मॉर्निंग में फिर मैंने 100-400 का लेंस निकाला, और उससे क्योंकि इस तरीके का मून बहुत रेयर देखने को मिलता है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, प्लस ये आर्मी का एक सेटअप था, हॉर्स था, अच्छा एक कॉम्पोजिशन बन रहा था। तो ये सोनमर्ग था, सोनमर्ग का जंस्कार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये मैंने इसलिए डाला है कि जब भी आप कहीं जाते हैं तो पूरी जर्नी आपको कुछ ना कुछ देती है। तो जंस्कार पहुंचने से पहले भी आपको बहुत कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ जंस्कार में ही मिलेगा। ये सितंबर में जब हम गए थे तब पूरा का पूरा वेजिटेशन बदल गया था, तो कोशिश यही करते हैं कि कुछ समथिंग डिफरेंट फ्लोरा एंड फोना के हिसाब से निकाला जाए। द्रास के अंदर जब हम पहुंचे तो एकदम से ऐसा लगा कि हम कहाँ पे आ गए, बिल्कुल एक अलग ही तरीके की रॉक्स थी, और रिवर का कलर था, ऊपर क्लाउडी बहुत ज्यादा हो रहा था। तो यहाँ पे हम लोगों ने काफी टाइम स्पेंड किया, 1 आवर स्पेंड किया। मैंने यहाँ के फोटोग्राफ नहीं बनाए क्योंकि मेरी इतनी मतलब एब्स्ट्रैक्ट वाली नजर नहीं थी जिसके अंदर कि मैं यहाँ पे कुछ अच्छे फ्रेम्स बना सकूं, लेकिन मुकेश जी ने और अनिल जी ने यहाँ पे बेहतरीन शॉट्स बनाए, और वो मैंने देखे भी हैं। इनको पता नहीं इन सारे पत्थरों में इतनी सारी चीजें दिख जाती है, हमको तो पूरा वाइड लैंडस्केप ही दिखता है, इनको तो क्लोजअप्स में भी बहुत सारी चीजें दिख जाती है। तो डेफिनेटली हम लोगों को अनिल जी के जब हम जंस्कार सीरीज देखेंगे उनमें इन्हीं पत्थरों का, द्रास के पत्थर आप याद कर लीजिए दोस्तों, ये द्रास के पत्थरों में जो अनिल जी और मुकेश जी आपको जो चीज दिखाएंगे वो मैं नहीं दिखा पाऊंगा। तो लेकिन हमारा एक अच्छा ग्रुप शॉट था जो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन था। हमने ट्राईपोड पे कैमरा लगा के, क्योंकि हमारे साथ में और कोई नहीं था, तो ये ट्राईपोड पे लगा के हमने एक फ्रेम डिसाइड किया और अच्छा सा एक ग्रुप शॉट लिया। देन हम लोग पुर्तिकचे पहुंचे। पुर्तिकचे से हमारा सफर चालू होता है, क्योंकि पुर्तिकचे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है जब आप जंस्कार जाते हैं। जंस्कार का पार्ट नहीं है, सुरू वैली बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे जो ये रिवर है ये सुरू रिवर है, ये निकलती पेंजिला पास से है। पेंजिला पास जो है उसके दूसरी साइड के अंदर जंस्कार वैली चालू होती है, लेकिन हम इसको पार्ट ऑफ जंस्कार ही मानते हैं, क्योंकि नॉर्मली ये एक पहले क्लोज वैली थी, तो जंस्कार जाने के लिए इसी वैली को यूज किया जाता था। एंड प्लस लद्दाख के अंदर जो हाईएस्ट पीक्स है वो दोनों यहाँ पे है, नुन एंड कुन। ये 2 पीक्स हैं, नुन एंड कुन।
ये काफी फेमस इनके एक्सपीडिशंस होते हैं और यहाँ से इसका बहुत ही सुंदर व्यू आता है। ये मेरा अगस्त वाला एक्सपीडिशन था, तो यहाँ पे मैंने ये फ्रेम इसलिए डाला है कि मेरा एक रहता है कि लेस इक्विपमेंट में आप बेहतर काम कैसे कर सके। तो मैंने ट्राइपॉड पे कैमरा लगाया, मेरे पास सिर्फ एक ही फ्लैश थी, ओनली वन फ्लैश, जो मैं साथ लेके गया था, और मैंने 3 बार में तीनों फेस पे अलग अलग फ्लैश को यूज किया एंड बाद में उन तीनों इमेजेस को सैंडविच कर दिया ताकि ऐसा लगे कि 3 फ्लैश तीनों के ऊपर अलग अलग करी थी। तो ये टेक्निकल इनपुट भी मैं थोड़ा थोड़ा सा इसमें आपको देना चाहूंगा, क्योंकि अगर मैंने ये इमेज लगाई है तो क्यों लगाई है, उसके पीछे रीजन होना चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं तीनों के फेस पे अलग अलग डायरेक्शन से लाइट आ रही है। वो अलग अलग डायरेक्शन से नहीं है, मैंने खुद ने ही हाथ में रिमोट ले लिया, कैमरा अपनी जगह पे फिक्स था और फ्लैश ऑफ कैमरा फ्लैश को यूज करते हुए मैंने इन तीनों के ऊपर लाइटिंग किया और इस फ्रेम को बनाया ताकि एक अच्छा ग्रुप शॉट हम लोगों की मेमोरी में आ सके। सनसेट्स, सुरु वैली के सनसेट्स बहुत अच्छे होते हैं एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। ये नून एंड कुन है और प्लस नीचे जो आप रिवर देख रहे हैं ये सुरु रिवर है। अगेन वो ये एक दिन पहले का है, सॉरी 1 महीने पहले का है और ये 1 महीने बाद का है, तो बदलते रहे। आप रोज जाएंगे डेली कुछ ना कुछ आपको बदलेगा। ये स्लो शटर स्पीड के ऊपर है, वो हाई शटर स्पीड पे था। मॉर्निंग्स अगेन सुरु वैली के अंदर जब नून कुन को आप देखेंगे तो बहुत ड्रामा दिखाता है आपको। थोड़ा थोड़ा वॉक करके जाइए, थोड़ा हाइट पे जाएंगे अलग दिखेगा, थोड़ा रिवर के पास जाएंगे बिल्कुल अलग दिखेगा, लेकिन एक बेहतरीन प्लेस है इतनी हाई माउंटेन को देखने का। एंड ये ऑलमोस्ट 24 mm का शॉट है। आप 24 mm के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि ये जो माउंटेन पीक है वो कितनी बड़ी दिख रही है। तो ये बहुत पास में है, ज्यादा दूर नहीं है। अगर एज ए क्रो फ्लाई डिस्टेंस की हम बात करेंगे तो हार्डली 10 किलोमीटर दूर होगी ये हमारे से जो ये पीक है। ये देखिए, ये पास में विलेज लाइफ है यहाँ पे। तो जो लोग विलेज लाइफ पसंद करते हैं उनके लिए भी बहुत बेहतरीन जगह है। अच्छे कैनवास मिलेंगे आपको। एज ए पेंटर आप लगा विजुलाइज करेंगे तो यहाँ पे बहुत कुछ है, लेकिन स्पेशली हर मौसम में आपको वेजिटेशन के कलर बदलते जाएंगे। सितंबर में अलग मिलेगा, अगस्त में अलग मिलेगा, जुलाई में अलग मिलेगा। विलेज लाइफ बहुत अच्छी है। ये हम जब गए थे तो वहाँ पे एक वैक्सीनेशन कैंप लगा हुआ था एंड एक अच्छा फ्रेम हमको मिला। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अब इसमें मेरे को ये फ्रेम इसलिए पसंद आया कि एक ही लड़की ने मास्क लगा रखा है, बाकी किसी ने भी मास्क नहीं लगा रखा। तो ये एक मैसेज दे रही है कि समझ जाओ ये फाइनली मतलब उस समय तो कोविड था इसलिए हमको ये फ्रेम अब तो कोविड खत्म सा ही हो गया इसलिए अब इस फ्रेम की कोई वैल्यू बची नहीं है। अगेन देन फिर कोई भी प्लेस हम जो चूज करते हैं वो एस्ट्रो के हिसाब से करते हैं। तो ये मेरा एस्ट्रो का नाइट शॉट है यहाँ पे। और जो लोकेशन हमने सेलेक्ट की थी, हमने बकायदा ऐसी होटल सेलेक्ट करते हैं जहां से हम होटल से ही फोटोग्राफी कर सकें, हमें इधर उधर जाने का जरूरत ना पड़े। तो ये पूरा हल्का मूनलिट के साथ में हमने एस्ट्रो प्लान किया हुआ है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि हल्का हल्का पीक्स के ऊपर भी लाइट आ रहा है। और ये जो लाइट आ रही है ये ट्रैफिक की लाइट्स है, क्योंकि साथ में हाईवे भी चल रहा है तो हाईवे पे काफी सारी कार्स आती रहती है, तो हमने उस लाइट को यूज करना है, उसको अवॉइड नहीं करना है। अगेन देख लीजिए सेम, ये पूरी ये जो लाइट्स हैं ये सब ट्रैफिक लाइट्स हैं जो आ रही है आसपास की, हमको उसको यूज करना है। क्योंकि फाइनली एस्ट्रो के अंदर मेरा जो मतलब है, एस्ट्रो सिर्फ एक नाइट स्काई का रिप्लेसमेंट है, बाकी तो मेन एलिमेंट तो ओके वही रहने हैं जो आपकी एक लैंडस्केप फोटोग्राफी या ट्रैवल फोटोग्राफी में रहने वाले हैं। उसके बाद हम 2 दिन यहाँ पे रहने के बाद में, 1 दिन एंड 2 रातें रहने के बाद में हम लोग आगे चले और आगे परकाचिक की तरफ चले। तो परकाचिक, ये इसमें मैं कुछ पुराने शॉट्स भी दिखाऊंगा आपको। तंगोल का शॉट्स, तंगोल का शॉट में हमको ऐसी वेजिटेशन नहीं मिली थी ऐसा ही था शॉट, लेकिन वेजिटेशन ऐसी नहीं थी, थोड़ा सा कम येलो था, ऑरेंजिश कम था और रिवर का कलर इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि ये लेट अक्टूबर का शॉट है और हम जब गए थे हम सितंबर लास्ट में गए थे। तो ये तंगोल है और उस समय स्नोफॉल भी हो चुका था। ये मैं रेड डी हिमालय में जब गया था, ये तब का शॉट है। ये परकाचिक ग्लेशियर आप सामने यहाँ पे जब देख रहे हैं, ये परकाचिक ग्लेशियर है। ये काफी ड्रामेटिक ग्लेशियर है और इसको हाइट से कैसे देखा जा सकता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये सुरु रिवर है, आप स्लो शटर स्पीड पे, ये मैंने बिल्कुल आफ्टरनून में स्लो शटर स्पीड पे फोटोग्राफ्स करके इसका शॉट लिया हुआ है।
परकाचिक ग्लेशियर के सामने। ये अक्टूबर, लेट अक्टूबर का शॉट है और ये परकाचिक का ही लेट अक्टूबर का, जहाँ पे हम लोग रुक सकते हैं। एक ये जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, ये एक मतलब यहाँ का टूरिस्ट रेस्ट हाउस है, 2 कमरों का, यहाँ पे आप रुक सकते हैं। जब हम लोग गए थे तो यहाँ पे ये रेनोवेशन में जा चुका था, तो इस वजह से यहाँ पे हमारे लिए कमरा अवेलेबल नहीं था और यहाँ पे कोई रुकने की व्यवस्था नहीं है। बहुत छोटे विलेजेस होते हैं ये, वेरी स्मॉल विलेजेस, यहाँ पे कोई और होटल नहीं है। तो फिर हम लोग, ये मैं 1 महीने पहले गया था तब यहाँ पे रुका था, तो मैं करीब यहाँ से आप देख रहे हैं, ये पूरी वैली से ऊपर चढ़ के मैं ट्रैक करके आया और इस पूरे ग्लेशियर को, और ये नून पीक आप जो देख रहे हैं, ये नून पीक से ही एक ग्लेशियर की ब्रांच निकलती है जिसको कि परकाचिक ग्लेशियर बोलते हैं। और ये अभी जो आप शॉट्स देख रहे थे, बिल्कुल नीचे के देख रहे थे, तो करीब 2.5 किलोमीटर ऊपर स्टीप इंक्लाइन करके मैं ट्रैक करके आके मैंने ये पैनोरामा बनाया ताकि मैं इस जगह को आपको बेहतर ढंग से दिखा सकूं। तो हम लोग इस वैली से ऐसे करके आते हैं, ये देखिए यहाँ से, और यहाँ से ये अंदर इस वाली वैली में अंदर चले जाएंगे। तो एक तरह से यू टर्न टाइप का फील होता है, जब आप गूगल अर्थ पे देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा। इसी जगह का ये नाइट शॉट है जो मैंने, जो हमारा टूरिस्ट गेस्ट हाउस है यहाँ का, बहुत बेसिक गेस्ट हाउस है, आप वहां से ज्यादा उम्मीद न करें, बहुत ही बेसिक गेस्ट हाउस है, आपको यहाँ पे ज्यादा फैसिलिटीज नहीं मिलेगी। वहां पे मैंने इसका नाइट शॉट एस्ट्रो का प्लान किया था। और ये जो लाइट्स आप देख रहे हैं, अगेन ट्रैफिक लाइट्स जो थोड़ी थोड़ी जाती रहती है, हमने उसको यूज किया है फॉर आवर फॉरग्राउंड लिट करने के लिए। अब हम पहुंचते हैं ये इस पूरे ट्रिप की सबसे ड्रामेटिक प्लेस पे, जिसका नाम है रंगदुम। रंगदुम जब पहुंचते हैं उसके पहले एक जगह आती है जहां पे आपको इस तरीके की ये पीक्स दिखेंगे, ये पीक्स आप देख रहे हैं, और इसी जगह पे एक बुद्धिस्ट चौर्टन है, ये बुद्धिस्ट चौर्टन है, यहाँ पे आपको ये बुद्धिस्ट चौर्टन दिखेगा। ये परकाचिक और रंगदुम के बिल्कुल बीच में पड़ता है। तो ये जगह मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि यहां से बुद्धिस्ट लोग चालू हो जाते हैं, बुद्धिज्म चालू हो जाता है। इसके पहले जब हम परकाचिक या पुर्तिकचे या सुरू वैली में रहते हैं, तब तक वहां पे टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहां पे आपको पूरा का पूरा मुस्लिम कल्चर मिलेगा और इसके आगे आपको बुद्धिज्म कल्चर मिलेगा। तो हम लोग ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन अनऑफिशियली ये कह सकते हैं कि जंस्कार यहां से चालू होता है। रंगदुम से भी थोड़ा सा पहले ये जो जगह आती है, एक्चुअल में जंस्कार यहां से चालू होता है क्योंकि जंस्कार बुद्धिस्ट लोगों का है, बुद्धिस्ट लोग वहां पे ज्यादा रहते हैं। अब मुस्लिम्स भी बिजनेस करते हैं लेकिन मेनली बुद्धिस्ट लोगों का वो जगह है क्योंकि मोनेस्ट्रीज वगैरह है, और रंगदुम फेमस है मोनेस्ट्रीज के लिए। तो ये 2 शॉट थे जो हमने रास्ते में प्लान किए। ये पूरा टेरेन बदल जाता है जब आप लेट सितंबर जाते हैं, तो वेजिटेशन बिल्कुल जल के बदल जाती है। एंड आप खुद देख रहे हैं ये इतने हाई पीक्स वाले जो माउंटेन्स आपको दिख रहे हैं, हाई स्नो वाले माउंटेन्स जो दिख रहे हैं और इतने पास में जो नजर आ रहे हैं, वो इसीलिए नजर आ रहे हैं कि अभी हम जहाँ पे खड़े हैं वो ट्रांस हिमालय है, इसके बीच में सुरू रिवर है और इसके पीछे ये कोर हिमालयन रेंजेस है जिसको कि मेन हिमालयास कहा जाता है। ये मेन हिमालयास है। रंगदुम पहुंचने के बाद में आप वहाँ की जो लाइफ है आप उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहाँ के लैंडस्केप को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमने भी किया, कोशिश की, अगेंस्ट लाइट कुछ अच्छे शॉट्स बने, कुछ पीपल के साथ में बने। एंड इस तरीके से ये जो पीछे आप देख रहे हैं, इस पिक्चर का बहुत बड़ा में जो कॉन्सेप्ट है, ये जो पीछे पीक है इसको शेपर्ड पीक बोलते हैं, और शेपर्ड्स ही हमारे सामने थे। दैट्स वाई इसको एक फ्रेम का मतलब स्टोरी टेलिंग फ्रेम के रूप में माना गया। शेपर्ड पीक विद सनसेट, बहुत अच्छा व्यू आता है इसका जब आप रंगदुम विलेज से इसको देखते हैं। जब हम वापस आ रहे थे रंगदुम मोनेस्ट्री करके, तो अगेंस्ट लाइट का जो ड्रामा हमको मिला एक, क्योंकि वहां पे रोड पे काम चल रहा है तो काफी ज्यादा डस्टी है वहां पे रोड सभी, और जब डस्टी रोड होती है तो कुछ ऐसा ड्रामा हमको मिल जाता है। एकदम से बिल्कुल ड्रामा बदल जाता है सुबह जब आप देखते हैं, काफी सारे कलर्स चेंज हो जाते हैं। ये जो पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये रंगदुम मोनेस्ट्री है, और जहाँ पे हम खड़े हैं ये रंगदुम विलेज है। बहुत बड़ा प्लेन एरियाज है, बहुत ही ड्रामेटिक यहाँ के जो टेरेन है, एंड माउंटेन्स के अंदर जो शेप्स हैं बहुत सारी ड्रामेटिक शेप्स है, काफी सारी वेजिटेशन है, काफी सारे पैटर्न्स हैं। पूरा विलेज लाइफ आपको देखने को मिलेगी, चॉर्टन्स मिलेंगे। इन्हीं चॉर्टन्स को हम लोग यूज करते हुए हम लोग एस्ट्रो प्लान
करते हैं, वो जो अभी आपको देखने को मिलेगा। और इस तरीके के ये जो बुद्धिस्ट टाइप के हाउसेज आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं, जब आप अक्टूबर में जाएंगे या सितंबर में जाएंगे तो हर घर की छत पे आपको इस तरीके से बहुत ज्यादा काफी चारा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अब ये पूरे 6 महीने के लिए बंद होने वाला है। तो ये लोग अपने जानवरों के लिए पूरा का पूरा अपनी छत को भर लेते हैं चारे से, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। यहाँ से हमारा एस्ट्रो का सफर चालू। तो जब हम जा रहे थे तो मैंने सभी लोगों को बोला कि हम लोग यहाँ पे एस्ट्रो प्लान करेंगे। और ये जो ब्लू स्काई देख रहे हैं, पर्सनली मेरे को बिल्कुल डार्क स्काई वाला मिल्की वे इतना पसंद नहीं है, जितना हल्का ट्वेलाइट के साथ में या मूनलाइट के साथ में आता है, क्योंकि वो एक थोड़ा सा कलरफुल लाइफ क्रिएट करता है मेरे लैंडस्केप्स के अंदर। ब्लैक होराइजन मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता, तो मैं कोशिश करता हूँ कि या तो मैं सनसेट से ही अगर मेरे को मिल्की वे मिलने लगे तो मैं उसको जरूर शूट करूँ। तो दोनों शॉट आपको दिखाएंगे, दोनों शॉट अपनी जगह अलग हैं, लेकिन पर्सनली मेरे को ये ज्यादा पसंद है, किसी को ये ज्यादा पसंद हो सकता है। और ये जो फोरग्राउंड में जो आप लाइट देख रहे हैं, ये राइट साइड में जो लाइट है वो मेरी कार की पार्किंग लाइट है, और जो लेफ्ट साइड में जो आपको कट लाइट दिख रही है, ये मेरी हेड टॉर्च है, जो मैं बार बार 30 सेकंड का एक्सपोजर लगा के खुद जाके भाग के लाइट ब्रश कर रहा था। तो ये पूरा जो फोरग्राउंड है, ये हमने लाइटिंग क्रिएट किया है, ये लाइटिंग अवेलेबल नहीं है, ये लाइटिंग को हमने क्रिएट किया हुआ है। तो ये टोटल फ्रेम एक तरीके से क्राफ्टमैनशिप के अंदर काउंट होगा, ये कैप्चरिंग में काउंट नहीं होगा कि मतलब जैसे अच्छा फ्रेम मिला और आपने कैप्चर कर लिया, कैप्चर नहीं है, ये आपका क्रिएशन में आ जाएगा कि आपने इसको क्रिएट किया हुआ है। तो ये इस तरीके के शॉट्स हम लोग, ये पूरा जो लाइटिंग आप देख रहे हैं पूरा क्रिएशन। यहाँ पे भी आप जब देखेंगे तो यहाँ पे विलेज की लाइट भी आ रही है, साथ में लेफ्ट साइड में जो ये फिल लाइट आप जो देख रहे हैं, ये मेरे टॉर्च लाइट ही है। लेकिन यहाँ पे मैंने 2 शॉट क्यों लगाए हैं, इसके पीछे का आपको रीजन बता देता हूँ। नॉर्मली हमारे पास में वाइड एंगल लेंसेज होते हैं, हम लोग क्या करते हैं उसको टिल्ट अप करके शूट कर देते हैं स्काई ज्यादा बढ़ाने के चक्कर में, और इनकी शेप बिल्कुल खत्म हो जाती है। यहाँ पे मेरे पास में 14 mm का शॉट था, लेंस था, मैंने उसको बिल्कुल स्ट्रेट रखा है, स्ट्रेट रखते हुए ताकि मेरी लाइंस स्ट्रेट रहे, और उसके बाद में मैंने यहाँ पे क्रॉप कर दिया फ्रेम को। आप देख रहे होंगे मैंने बिल्कुल क्रॉप कर दिया, क्योंकि ये एरिया मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन वहां पे शॉट में मेरे को ये एरिया रखना जरूरी था, क्योंकि अगर मैं इसको पहले ही कंपोजिशन में टिल्ट अप करता तो बहुत ही ज्यादा डिस्टॉर्शन आ जाता, जिसकी वजह से मेरे को ये फ्रेम बहुत ऑड लगने लग जाता। और ये जो चॉर्टन्स है, देखिए मिल्की वे एक अलग चीज है, मिल्की वे एक एलिमेंट है, लेकिन जो हमारा कोर एलिमेंट है फोटोग्राफ का वो हमारा फॉरग्राउंड एंड जो मेन लैंडस्केप है उसका मेन पार्ट है। अगर वो डिस्टॉर्टेड हो गया बहुत ज्यादा तो फिर आपका वो फ्रेम अच्छा नहीं लगेगा। तो दैट्स वाई मैंने ये दोनों फ्रेम आपके सामने लगाए हैं। फोटो एक ही है, खाली शूट ऐसे किया है और फाइनल शॉट क्रॉप करके इस तरीके से यूज किया है। उसके बाद हम लोग सेकंड डे जब हम रंगदुम में थे, तो पिछले जो मेरा अगस्त वाला ट्रिप था उस समय ठंड कम होती थी, तो मैंने द्रंगद्रुम ग्लेशियर पे कैंप किया था। और वहां पे जब हमने अगस्त में कैंप किया तो मेरे को लगा कि जब उस समय ही इतनी ठंड है तो सितंबर में क्या हाल होगा। तो सितंबर में फाइनली हमने यहाँ का कैंपिंग का आइडिया ड्रॉप कर दिया। तो ये एक जगह है, ये 4500 मीटर का एल्टीट्यूड है, 4400 प्लस का मीटर का एल्टीट्यूड है, और ये 2 लेक्स हैं, बहुत सुंदर लेक्स है यहाँ पे। एक का नाम है स्टैट्सो, एक का नाम है लेम्सो। ये 2 लेक है, ट्विन लेक है बेसिकली। एक और लेक है वो इसके पीछे है, लेकिन वो इसका पार्ट नहीं मानते, वो बहुत ही मतलब दिखती नहीं है, एक साथ नहीं दिखती है। तो ये 2 लेक हैं, और यहाँ पे आप जब देखेंगे चारों तरफ तो यहाँ पे आपको बहुत सारी वाइल्ड लाइफ में स्पेशली जो मार्मोट्स होते हैं वो काफी सारे आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप यहाँ पे रुकेंगे तो वो आपको देखने को मिलेंगे। और ये पीछे कोर हिमालयाज है, अभी आपको इसका ग्लेशियर का रूप भी देखने को मिलेगा। ये है द्रंगद्रुम ग्लेशियर। जैसे आप पेंजिला पास क्रॉस करके हल्का सा नीचे उतरते हैं तो यहाँ पे ये द्रंगद्रुम ग्लेशियर आपको देखने को मिलता है। ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है जम्मू कश्मीर का, सियाचिन के बाद में। सियाचिन तो खैर वैसे भी लार्जेस्ट ग्लेशियर है इंडिया का, लेकिन जम्मू कश्मीर का ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख का सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है। और मैं आपको इतना सा बता सकता हूं कि मैं अभी तपोवन जाके आया हूं, ओनली 1 ग्लेशियर जो आप बाय रोड देख सकते हैं इंडिया में। अभी तक और कोई भी ग्लेशियर ऐसा नहीं है जिसको कि आप बाय रोड देख सकते हैं, आपको ट्रैक करके ही जाना पड़ेगा। ये एकमात्र ग्लेशियर है जो आप रोड से ऊपर है और आप इसको आराम से देख सकते हैं। तो इस
ग्लेशियर की आप ब्यूटी देखेंगे, एक तो एस कर्व है, फोटोग्राफी में एस कर्व वैसे ही बहुत ज्यादा फेमस है, तो इसलिए कॉम्पोजिशन वाइज आपको बहुत बड़े एलिमेंट का ये फोरग्राउंड देता है। तो इस तरीके से आप देखिए, ये इसका सनसेट का शॉट है। ये हमने जब अगस्त में कैंप लगाया था और हम लोगों को इतनी ठंड लगी थी यहाँ पे कि हम लोग खाना नहीं बना पाए थे, और खाना नहीं बना पाए थे, हमने जो हमारे पास में ड्राई राशन था एंड जो हमने रखा हुआ था उसी से हमने अपना पेट भरा, क्योंकि इतनी ज्यादा तेज विंड थी, पासेस के ऊपर बहुत ज्यादा हाई विंड्स चलती है, तो वहां पे खाना बनाना मुश्किल हो गया। तो फाइनली सितंबर के लिए मैंने ये कैंपिंग अवॉइड कर दिया, इसीलिए हम लोग रंगदुम में 2 नाइट रुके थे, और जब हम इस ट्रिप पे थे तो रंगदुम में हम लोग नहीं रुक के हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे हमने कैंप किया था। ये देखिए, बिल्कुल जब रात हो जाती है तो टेंट को भी हम एलिमेंट के रूप में यूज करते हैं अपने फोटोग्राफ्स के लिए। ये अगस्त का है। अगेन मानसून के अंदर मेरे को मिल्की वे बहुत पसंद है, क्योंकि जब क्लाउड्स आ जाते हैं तो मिल्की वे का एक थोड़ा सा ड्रामेटिक फेस हमको देखने को मिलता है, और थोड़ा रियलिस्टिक भी लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि लाइफ आ गई है, क्योंकि क्लाउड्स एक लाइफ का पार्ट प्ले करती है कि स्काई के अंदर, तो एक अनदर लाइफ उसमें ऐड हो जाती है। और इसका जो मजा है, जब मैं आपको टाइमलेस दिखाऊंगा तो टाइमलेस में आपको देखने को मिलेगा। विदाउट क्लाउड्स भी है, ऐसा नहीं है कि हमने विदाउट क्लाउड शूट नहीं किए। अगेन एक एक ट्रक की लाइट हमको यहाँ पे मिली, हमने उसको भी कैप्चर किया और उसको इसके साथ इनकॉर्पोरेट किया। डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव है हमें ये बताने के लिए कि हम कहाँ पे हमने नाइट स्पेंड किया था। मेरे पिछले वाले जो टूर के तीनों पार्टिसिपेंट्स थे द्रंगद्रुंग ग्लेशियर पे थ्रू आवर कैंप। ये पूरा पैनोरामा है, स्टिच पैनोरामा है, ऑलमोस्ट 180 डिग्री के आसपास का ये पैनोरामा है, 170 मान सकते हैं। और यहाँ पे ये जो टेरेन है, जो नीचे रोड आ रही है, इसमें जो ट्रक आपको दिख रहा है, ये छोटी सी ग्लेशियर लेक्स है, यहाँ से ये रिवर। अब यहाँ पे देखिए आप, जो पेंजिला पास था वहां से टुवर्ड्स रंगदुम जो रिवर थी उसका नाम था सुरु, और ये वाली जो रिवर है जो पदम की तरफ जा रही है इसका नाम है स्टोड, STOD, स्टोड रिवर। ठीक है, तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ज्योग्राफिकल नॉलेज भी होना हर जगह की जरूरी है। और हमारे तीनों पार्टिसिपेंट इस जगह पे शायद बहुत खुश हुए होंगे जब हमने एक ग्रुप शॉट लिया, क्योंकि ये एक बहुत ही ड्रामेटिक प्लेस है। और जब हम यहाँ पे, और आप इसको फोटो में नहीं इमेजिन कर सकते, इसकी जो साइज है, जो इसका स्केल है, हम लोग फोटो में नहीं इमेजिन कर सकते, जब तक आप जाएंगे नहीं आप इसको फील नहीं कर सकते। तो मैं यही बोलूंगा कि फोटो इस जगह को जस्टिफाई नहीं करती। उसके बाद हम लोग पदम पहुंचते हैं, और जब हम पदम जाते हैं तो रास्ते में बड़ा ड्रामेटिक तरीके के लैंडस्केप बदलना चालू हो जाते हैं। अगेन मैंने आपको बताया था ट्रांस हिमालयन रेंजेस भी आपको बहुत अच्छे से दिखना चालू हो जाती है। एंड प्लस जो रिवर्स है, ये जो एरियाज हैं, जो इस तरीके के जो ये विंड से कटे हुए जो आपको ये फॉर्मेशंस मिलती हैं रॉक्स की, ये आपको ट्रांस हिमालयन में ही ज्यादा मिलती है। अगेन मोनेस्ट्रीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, कलरफुल जगह है, बहुत कलरफुल जगह है। ये सानी लेक बना दिया इन्होंने, आर्टिफिशियल लेक बनाया है, सानी गोम्पा बोलते हैं इसको। सानी गोम्पा ओल्डेस्ट गोम्पा है, लेकिन उसके पास में यहाँ पे इन्होंने एक सानी लेक दी है, यहाँ पे इन्होंने स्कल्पचर का लगाया है ताकि लोग टूरिज्म को और अट्रैक्ट कर सकें और लोग इस कल्चर को समझ सकें। अगेन वेरी कलरफुल, बहुत अच्छे अच्छे पोर्ट्रेट्स मिलेंगे आपको। आज भी यहाँ की जो लेडीज हैं, जो वो वही पुराने कपड़े पहनती हैं, वही पुराने अटायर है उनका, जो कि बुद्धिस्ट लोगों का पुराने टाइम पे होता था। उनकी चाहे कैप देख लीजिए, चाहे हाथ में इनका जो प्रे करने के लिए जो मालाएं हैं वो देख सकते हैं। और थ्री जी को इतना अच्छा लगा था ये देख के मैंने ये फोटो जब शूट किया तो मेरे को लगा कि मेरे इस पूरे ट्रिप का बेस्ट फोटो है, क्योंकि ऐसी स्माइल कैप्चर करना बहुत ही रेयर हो जाता है। जब हम करशा मोनेस्ट्री, जब पदम के पास में एक बहुत फेमस मोनेस्ट्री है करशा मोनेस्ट्री, जब हम गए, बच्चे स्कूल से छूट रहे थे, तो मैंने आपको बताया ना, एज ए फोटोग्राफर हम लोगों को एक किसी भी जॉनर से बंधना नहीं चाहिए। अगर एज ए फोटोग्राफर नजर आपको जो भी कुछ मिल रहा है उसको जरूर कैप्चर कीजिए, क्योंकि मेमोरीज को कैप्चर करना सबसे पहला हमारा लाइफ दायित्व है एज ए फोटोग्राफर। क्योंकि फ्यूचर जनरेशन में अगर ये चीज नहीं रही तो ये हमारी फोटोग्राफ के थ्रू ही डॉक्यूमेंट रहेगी। फ्यूचर में बच्चे इसको, या फ्यूचर में आने वाली जनरेशन इन्हीं फोटोग्राफ्स के
के थ्रू ये जान पाएगी कि हमारा पुराना कल्चर कैसा था। इंडोर, अगेन मैंने आपको बताया जब मैं कोई भी नया लेंस लेता हूँ तो मैं उस पर एक्सपेरिमेंट करता हूँ। 14 mm के साथ में मैंने इसको एक्सपेरिमेंट किया। ये करशा मॉनेस्ट्री थोड़ा हाइट पे है, तो हाइट से ये पूरा जो लेफ्ट एरिया देख रहे हैं, ये देखिए आप, पूरा ये कोर हिमालयन रेंजेस है, और ये जो नीचे का पूरा एरिया है ये पदम है, जो कि एक छोटा सा टाउन है जिसको कि मेन टाउन जंस्कार का कहा जाता है। काफी सारा यहाँ पे एक्टिविटीज आपको मिलेगी। अगर आप ट्रेवल फोटोग्राफी लवर हैं तो यहाँ पे आपको पूरा दिन स्पेंड करना चाहिए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अगेन मैंने तीनों शॉट लिए, ये जब हम रात को शॉट कर रहे थे, तो ये गुरु गोम्पा है, पिबिटिंग गोम्पा भी बोलते हैं इसको, और ये टाउन की मोनेस्ट्री है, पदम टाउन के अंदर एक मोनेस्ट्री है, एंड पदम टाउन से ही ये मिल्की वे इस तरीके से दिख जाता है। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने पिछले अगस्त में हमने ये प्लान किया, और सितंबर में हमने ये किया। सितंबर में क्योंकि यहाँ से शहर से हमने होटल की छत से किया है ये वाला मिल्की वे। ये पूरा पदम टाउन है और ये हमारा कोर हिमालयन रेंजेस है, और उसके ऊपर ये मिल्की वे आ रहा है। और सेकंड नाइट हमने ये स्टार ट्रेल किया, जो कि पिबिटिंग गोम्पा। पिछली अगस्त में मैं इसके पीछे गया, और सितंबर में मैंने इसके इस साइड से ये एक स्टार ट्रेल का शॉट किया। 2 आवर्स लग जाते हैं किसी भी शॉट को करने में। 2 घंटे तक हम लोगों को छत पे बैठना पड़ा। हम लोग और कुछ नहीं कर सकते, चाहे कितने भी थके हुए हों, ये सारे काम हमको करने पड़ते हैं। फिर हम लोग दूसरे दिन चले, तो ये जांगला जाने के लिए बहुत ही सुंदर रोड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोड, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ऐसी रोड्स इंडिया में है, यही देख के बड़ा मजा आएगा। तो पदम में जो लोग सोचते हैं कि बहुत ही खराब रोड्स है, जी हाँ, ज्यादातर जगह खराब है, लेकिन कुछ रोड है जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोड है, जो जांगला फोर्ट के लिए जाती है। ये जांगला फोर्ट है, बहुत ही सुंदर प्लेस है। ज्यादा फोटो मैंने अभी तक इसके बनाए नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जगह है, जरूर मस्ट विजिट प्लेस अगर आप जंस्कार जा रहे हैं तो। थोड़ा अर्ली जाइए, टाइम स्पेंड कीजिए, बहुत ही अच्छे ड्रामेटिक आपको शॉट्स मिलेंगे। जब हम दूसरे दिन फिर यहाँ से पदम से हम लोग चले हमारे माउंट गौनबो रंजन पुरने की तरफ, तो ये बड़ी ही सुंदर मोनेस्ट्री आती है, बरदान मोनेस्ट्री बोलते हैं इसको। और ये जो रिवर है, ये जो आप रिवर देख रहे हैं, इसका नाम है लुंगनाक। और इसके पहले जो आपने ये वाली रिवर देखी है, इसका नाम है जंस्कार रिवर। तो जंस्कार रिवर कहाँ पे बनती है, मैं आपको पहले समझा देता हूँ। ये जो पदम शहर है, पदम में जो पेंजिला से जो रिवर आ रही है उसका नाम है स्टोर्ड रिवर, और जो टूवर्ड्स बरदान मोनेस्ट्री या करगियाक की तरफ से या पुरने की तरफ से या शिंकुला की तरफ से जो रिवर आ रही है उसका नाम है लुंगनाक। तो ये जब लुंगनाक और स्टोर्ड रिवर का संगम आपको देखने को मिलेगा पदम में, अगर आपका भी अच्छा कलर हो तो आप इसको शूट कर सकते हैं, कॉन्फ्लुएंस है बहुत अच्छा। और यहाँ से ये रिवर जंस्कार के रूप में जानी जाती है, और ये रिवर जाती है लेह के निम्मू शहर में जाके इंडस वैली से मिल जाती है, इंडस रिवर से मिल जाती है। और इसी रिवर में चादर ट्रैक होता है। जो चादर ट्रैक है वो बेसिकली जंस्कार रिवर में ही होता है, और जंस्कार रिवर के मतलब निम्मू से जंस्कार आने के लिए इस रिवर के साथ में पहले लोग आया करते थे सर्दियों में। रास्ते में बहुत सारे डिफरेंट शॉट्स मिलते हैं, हम लोग कभी भी कोई चीज को मिस नहीं करते, तो हमने ये शॉट भी लिया। कुछ ड्रामेटिक पैटर्न्स मिले, हमने विलेजेस लाइफ के हिसाब से वो भी कैप्चर किए। एंड सुबह सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट से के आसपास करीब 10:30-11 बजे पुरने एक छोटा सा विलेज है जहाँ से पुख्तल मोनेस्ट्री का ट्रैक चालू होता है। एंड पुरने विलेज हम पहुंचे जहाँ पे हमारा एक होम स्टे था। एंड पुरने से हम लोगों ने अपना ट्रैक चालू किया, जो कि 4 किलोमीटर का मॉडरेट ट्रैक बोलूंगा। मॉडरेट इस सेंस में बोलूंगा कि बहुत ज्यादा अप डाउन है, एंड 4000 मीटर एल्टीट्यूड पे होने की वजह से लैक ऑफ ऑक्सीजन है, तो थोड़ा आपको चलने में सांस फूलने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। और ज्यादातर ट्रैक में क्या होता है, थोड़ा सा इंक्लाइन होता है, तो धीरे धीरे आप चल लेते हैं, फिर बहुत ज्यादा डिसेंट आ जाता है, यहाँ आते वक्त डिसेंट आ जाता है। इसमें आप चाहे जाएंगे तब भी अप डाउन आएगा, और आएंगे तब भी अप डाउन आएगा, तो जिसकी वजह से आप रिलैक्स नहीं हो पाते। आपको अपनी स्पीड बहुत स्लो रखते हुए चलना है। नॉर्मली ज्यादातर लोग कर लेते हैं, बहुत ही अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो आप नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज ज्यादातर लोग कर लेते हैं। एंड जब आप लेकिन इस रिवर को देखेंगे तो आप सरप्राइज हो जाएंगे, ऐसी रिवर के कलर मैंने अपनी लाइफ में
मानसून में तो कभी नहीं देखे। मानसून में ज्यादातर जो रिवर्स होती है वो डर्टी या सिल्ट के साथ में बहने वाली होती है। आपने खुद देखा, इसके पहले जितनी भी आप रिवर देख रहे थे, ये देखिए कितनी ज्यादा सिल्ट से भरी हुई है, जबकि ये सितंबर का शॉट है और मानसून ऑलमोस्ट खत्म है। पूरे मानसून में ये ऐसी रिवर रहती है, लेकिन ये रिवर हम लोग सोचते थे स्काई का रिफ्लेक्शन आता होगा रिवर के अंदर, जबकि यह जब इस रिवर को देखा मैंने तो पूरा स्काई ग्रे टोन में है, उसके बावजूद ये रिवर का कलर यही है। और ये मोनेस्ट्री बहुत ही पुरानी, करीब 2500 साल या 2000 साल पुरानी मोनेस्ट्री है। बहुत ही अमेजिंग मोनेस्ट्री है, मस्ट विजिट प्लेस। अगर आपको कल्चर देखना है जरूर जाइएगा। बहुत सारे यहाँ पे आपको मॉन्क्स मिलेंगे, पूरे उनसे आप बात कर सकते हैं और इस तरीके का ड्रामेटिक लैंडस्केप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 4 किलोमीटर का सिंगल साइड ट्रैक है, 4 किलोमीटर जाना और 4 किलोमीटर आना, टोटल 8 किलोमीटर का आपको इसके लिए ट्रैक करना पड़ता है पुरने विलेज से। पुरने विलेज से करीब 1-1.5 किलोमीटर एक दूर पार्किंग प्लेस है, जहां से आप लोग अपना ट्रैक चालू कर सकते हैं। रास्ते में हमको आप खुद देख सकते हैं कि कितने ओरिजिनल अटायर के साथ में जो यहाँ के लेडीज हैं वो हमको मिली, और इनके गले की ज्वेलरी और प्लस पीछे रिवर का कलर और टेरेन बिल्कुल डिफरेंट बुद्धिज्म वाला प्लेस है। माउंटेन के कलर भी डिफरेंट डिफरेंट आ जाते हैं। जब आप वापस आते हैं तो कुछ म्यूल्स के साथ में भी आप अच्छे शॉट्स प्लान कर सकते हैं। और ये पुराना, इसका जो पुराना ब्रिज है, अब नया ब्रिज बन चुका है जहां से ये जो आ रहे हैं। पहले इस झूले वाले ब्रिज से, जो कि डेंजरस ब्रिज है, इससे जाना पड़ता था, लेकिन अभी इन्होंने एक अच्छा ब्रिज बना दिया है जिससे कि आप इस रिवर को क्रॉस कर सकते हैं। ड्रामेटिक लाइटिंग कंडीशंस में ड्रामेटिक शॉट्स आपको जरूर मिलेंगे। बिल्कुल सनसेट के टाइम पे हम लोग पहुंचे तो जगह बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया, इसका पूरा का पूरा चेंज हो गया। और इसी जगह पे पुरने विलेज में जिस होम स्टे में हम रुके थे, उसकी छत से हमने नाइट के अंदर ये एस्ट्रो शॉट भी बनाया। एलिमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो एलिमेंट हमारे लिए जॉर्टन्स थे एंड प्लस ये थे। और ये जितनी भी आप लाइट्स देख रहे हैं, अगेन रात को जो ट्रैफिक लाइट्स, जो कार जा रही है, कभी कुछ जा रहा है, ये उनकी लाइट्स हैं जिसको कि हमने इनकॉर्पोरेट किया है अपने फोरग्राउंड में। नाउ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जंस्कार के अंदर जो चीज है वो ये है माउंट गॉनबो रेंगजॉन। जब माउंट गॉनबो रेंगजॉन जो आप देखेंगे, जब मैंने पहली बार इसको देखा तो आप सरप्राइज हो जाएंगे कि मैंने जब इसको पहली बार देखा तो इसी शीशे के थ्रू देखा था। क्योंकि जब मैं आ रहा था, जब मैं मनाली की तरफ से आ रहा था, जब मैंने इसको पहली बार इस जगह को एक्सप्लोर किया, तो जब मैं मनाली की तरफ से आ रहा था तो ये, जब मैं मनाली की तरफ से पदम की तरफ जाऊंगा तो ये मेरे बैक साइड में होगा, ये माउंटेन मेरे बैक साइड में होगा। और मैंने ये शॉट सिर्फ इसीलिए आपको लगाया है कि मैंने पहली बार इसको बैक्यू मिरर में ही देखा था। मैं अपने ये जो मैं जा रहा हूँ, ये टुवर्ड्स पदम की तरफ जा रहा हूँ और मैंने इसको ये बैक्यू मिरर के अंदर देखा। तो सबसे पहला शॉट मेरा माउंट गॉनबो रेंजन का अपनी लाइफ का ये शॉट था, जिसको कि मैंने अगेन 12-24 2.8 का मेरा जी मास्टर का लेंस था, तो मेरे को उसके सन स्टार बहुत पसंद है। तो मैंने तीनों चीजों को इनकॉर्पोरेट किया कि एक फील्ड को भी दिखाऊं, मेरे को भी दिखाऊं, क्योंकि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेल्फी है, एंड प्लस मेरे इस माउंटेन को दिखाऊं, एंड प्लस सनबर्स्ट को दिखाऊं, जो कि मेरी टेक्निक है किसी भी चीज को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एनहेंस करने के लिए। नाउ जब मैं वापस आ रहा था सनसेट के टाइम पे, तो इसके बिल्कुल ये लेट अक्टूबर शॉट है। लेट अक्टूबर में रिवर के कलर बदल जाते हैं। ये लेट अक्टूबर का शॉट है, 2020 का शॉट है। अगेन कुछ म्यूल्स मिले तो वहां से उसको कंपोज करने में बहुत मजा आया। अगेन म्यूल्स के साथ में बड़ा अलग ड्रामेटिक फील देता है। एंड एक जगह जब मैं खड़ा हुआ तो मेरे इस बर्ड ने मेरे को इसको फ्रेम को बना दिया। और आप देख रहे हैं लेट अक्टूबर में कलर्स आपको जरूर मिलेंगे, लेट अक्टूबर लेट सितंबर। ये मेरा अगस्त का शॉट है। अगस्त में पूरा मानसून क्लाउड्स हो रखे थे, मैंने कैंप किया यहाँ पे। मॉर्निंग का शॉट है, जस्ट मॉर्निंग के अंदर यहाँ पे बड़ा ड्रामेटिक होता है लाइट, लेकिन पानी इस समय बहुत ज्यादा है क्योंकि ये अगस्त का महीना है। एंड ये अगस्त में ही हमने जो पहला कैंप किया था यहाँ पे लाइफ का। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने लौटते वक्त इसको क्यों प्लान किया है, क्योंकि ये एल्टीट्यूड है 4300 मीटर्स का, 14,000 फीट के से ऊपर का। अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे शांति से अच्छी फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। और अगर आप इसको स्वस्थ रहते हुए नहीं करेंगे तो आप इस जगह को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। और अब हमें टोटल 11 दिन हो चुके हैं हमारे ट्रिप पे,
10 दिन हो चुके हैं। तो जब हम यहाँ पे कैंप कर रहे हैं तो हम फुली, हम लोग सब एक्लेटाइज थे और हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से इस जगह को एंजॉय किया। पूरी हमने रात को 12 बजे तक जग के यहाँ पे टाइम लैप्स बनाए एंड एस्ट्रो शॉट्स किए। ये देखिए पूरा का पूरा ड्रामेटिक शॉट्स बने। बड़े अच्छी वेजिटेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। सितंबर के मंथ में कलरफुल वैली हो जाती है, तो आप दिन में भी बहुत अच्छे शॉट्स, शाम को भी बहुत अच्छे शॉट्स प्लान कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेशन, डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव, अगेन थ्रू माई टेंट नाइट। जो ये सितंबर का है, बिल्कुल क्लाउडलेस हमको मिल्की वे मिला और बहुत ही ड्रामेटिक मिल्की वे मिला। ये सुबह मॉर्निंग, अब आप देख सकते हैं सितंबर में इस रिवर का फ्लो इतना कम हो गया कि मैं रिवर में उतरा और फटाफट जाके इस रिफ्लेक्शन को मैंने कैप्चर किया। एंड ये मतलब एक अच्छा ड्रामेटिक शॉट मेरे को इस जगह का मिला। सुबह मॉर्निंग का ये पिछला ग्रुप का शॉट है मेरा। हम लोग कोशिश करते हैं कि जब कैंप करें तो आराम से हमारे पास में कुर्सी टेबल भी हो, सभी कुछ हो। एंड ये हमारे इस वाले ट्रिप का शॉट है मॉर्निंग के अंदर, जिसमें आप देख रहे हैं रिवर में बिल्कुल पानी खत्म हो गया है क्योंकि सितंबर का मंथ आ चुका है। एंड शिंकुला एंड मनाली, जब हम यहाँ से चलते हैं तो हमारी जर्नी का सबसे खराब रोड, जो सबसे टफ रोड जिसको हम बोलेंगे, वो चालू होता है। और ये 1 साल पहले का है। ये 1 साल बाद इतना टारमेक हो चुका है, लेकिन पिछली साइड में हुआ है, हिमाचल की तरफ हुआ है, जम्मू कश्मीर की तरफ, या लद्दाख यूटी की तरफ नहीं हुआ है। ये शिंकुला के ऊपर एक बहुत ही सुंदर लेक है, ग्लेशियर लेक बोलते हैं इसको। हर वक्त अलग लुक देती है, हर वक्त अलग कलर्स देती है। ये अगस्त के अंदर हमको इस तरीके का मिला था और सितंबर में काफी अलग फील आता है। जब आप मनाली की तरफ जाएंगे तो लेट अक्टूबर या अक्टूबर फर्स्ट वीक से ही इस तरीके से आपको कलर्स पूरा जो ये देखने को मिलेगा। वैली में सिस्सू के पास में काफी इस तरीके के ड्रामेटिक आपको कलर्स देखने को मिलेंगे। तो आप रास्ते में भी फोटोग्राफी करते हुए ही जाएंगे। आप ये मत सोचिए कि आपने कैमरा पैक कर दिया है। टिल मनाली पहुंचने तक इस तरीके के ड्रामेटिक लैंडस्केप्स आपको मिलते रहेंगे। ये पूरा मनाली, जब अटल टनल हम क्रॉस करते हैं उसके बाद में भी हनुमान टिब्बा की साइड के अंदर आपको बहुत ही अच्छे लैंडस्केप आपको देखने को मिलेंगे। एंड मनाली पहुंचने के बाद में हम लोग रिलैक्स करते हैं, पोस्ट प्रोसेसिंग के बारे में डिस्कस करते हैं, बात करते हैं एंड कोशिश करते हैं जितने दिन खराब खाना खाया है मस्त वाला खाना खाएं और अच्छे से अच्छे एंजॉय करें और घर बिना थकान के पहुंचे। ये हमारा है। तो ये मेरे टाइम लैप्स है, जरा आपको मत कर देता हूं। ये दोनों ही, ये सितंबर का है और वो वाला अगस्त का था। अब आप समझ सकते हैं कि मेरी गाड़ी के अंदर कौन से सामान, कितना सामान रखा होगा। टेंट से लेके, फूड से लेके, सभी लोगों का हमारा सामान, वाटर वगैरह सब कुछ इसी गाड़ी में था। इसीलिए हम लोग सिर्फ 4 ही लोग जा सकते हैं, 5वां जना इसमें नहीं जा सकता। और टेंट जब लगाते हैं तो हम लोगों को खुद को सबको मेहनत करनी पड़ती है। तो ये भी एक अपना खुद का एक्सपीरियंस होता है जो हम लोगों को करना चाहिए किसी भी एक्सपीडिशन पे, क्योंकि कल को अगर आप खुद ट्रेवल करते हैं तो आपको ये चीज आना जरूरी है। ये मेरे एक्सपीडिशन का पार्ट होता है। तो नॉर्मली हम लोग 2 जगह कैंप करते हैं, लेकिन इस ट्रिप पे हम लोग एक ही जगह कैंप करते हैं क्योंकि पेंजिला की कैंपिंग बहुत डिफिकल्ट है और बाकी जगह अच्छी फैसिलिटीज मिल जाती हैं। तो जब फैसिलिटी है तो हम क्यों कैंप करें। और यहाँ पे कैंप करने का एक ही कारण है कि यहाँ पे कोई फैसिलिटी रुकने की नहीं है। दैट्स वाई कंपल्सरी है कैंपिंग यहाँ पे करना।
और इस माउंटेन के नीचे रात गुजारना अपने आप में, और इस माउंटेन के बारे में मैं आपको बता दूं, ये सेक्रेड माउंटेन है बहुत ज्यादा, और ये माउंट गॉनबो रंजन मतलब नेचर एंड गॉड दोनों का है, और ये बुद्धिस्ट लोग इसको पूजते हैं और महाकाल का रूप ही मानते हैं, महाकाल मतलब शिव का रूप ही मानते हैं। और अभी रिसेंटली जब मैं तपोवन गया तो तपोवन जाके मैंने मौनी बाबा को ये वाला फोटो दिखाया तो वो खुद दंग रह गए कि बिल्कुल शिवलिंग की जैसे ये दिखता है, और राइट साइड में ये जो माउंटेन है ये बिल्कुल मेरू की जैसे फील देते हैं, और ऑलमोस्ट सेम एल्टीट्यूड 4300 मीटर के एल्टीट्यूड पे ही तपोवन है, और यहाँ पे भी हम लोग 4300 मीटर के पे हैं। तो लिटरली उन्होंने खुद ने बोला कि धरती पे दो जगह एक जैसी है, ये आज देखने को मिला है। तो कभी कभी गुरुओं को भी हम लोग बता देते हैं हमारी फोटोग्राफी के थ्रू कि एक और जगह धरती पे ऐसी है। लव नेचर, लिव फॉर नेचर इज माय कॉन्सेप्ट। प्लीज कहीं पे भी जाएं अपना कार्बन फुटप्रिंट न छोड़ के आए, यही एक मेरी आपसे दरखास्त है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन। स्पेशल थैंक्स टू धनबाद कैमरा क्लब एंड मुकेश जी एंड आप सब लोग। थैंक यू वेरी मच। सर बहुत बहुत मजा आ गया पूरा देख के। माइंड ब्लोइंग हमने पूरी यात्रा रिवाइव कर दी, लगता है इस बार फिर करते हैं। माइंड ब्लोइंग। और मतलब तैयार बैठा हूँ सर। वंडरफुल इज द वर्ड। हम लोगों की याददाश्त ताजी हो गई। मैं तो फ्लैश बैठे सर, इस साल फिर चलने फ्लैशबैक में चला गया था। चलना पड़ेगा, अगले साल फिर चलेंगे। इस साल अगले साल नहीं। हाँ ठीक है, इस साल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिस ईयर Yes, friends, now before we come for question answer session, one thing we have missed in the beginning, that is the release of our May issue of Dhanbad Camera Club Bulletin. So now I request our Chief Advisor, Sri Anil Nisal Singh sir, to release the May issue of DCC Bulletin, which is our 8th issue. So over to you, sir. Thank you, Mukesh ji. I am sharing my screen. So I am releasing the May e-bulletin of Dhanbad Camera Club, and on the front page we are having this beautiful picture by Uncle Ronnie, Shri Rohinton Mehta ji. And this is the first year of publication, and every month Mukesh ji adding fresh pages. So this page is having information about the club officials. That's it. Then this is President's message, and President has written in this how these webinars and these e-bulletin are encouraging the members of Dhanbad Camera Club, and they are having more acceptances in national and international salons. And another very nice feature, that feedback and suggestion can be made on this given email ID. So this is very, very good. Members are always welcome to give their feedback and suggestions. And then club's activity during the on April 10th, we have an evening with Shri Rohinton Mehta ji. Wonderful information. We had seen wonderful images by Uncle Ronnie. And then in April's e-bulletin, Mukesh ji introduced new feature, that is the photo feature. So this is about that, and on the right hand side you can see the media coverage. This is also very important. People should know what activity is going on, so that more people may know about the activities of any particular club or institution. Then this is achievements by the members during April, and our friend from Germany, Barbara Smith. She's also a DCC advisor.
in that month, last month, she got 51 awards. Oh my God. 42 honor mentions, 9 medals, and 320 acceptances. I think she is participating in each and every salon. Yes. So this is 2 of her awarded images. Then DCC's president, Mukesh Srivastava got 2 awards in the last month. These are the images who got the award, and 1 jury assignment he had for the National Sun. And then Mr. Biplab Sikdar, he has got 7 acceptances and 1 award. Mr. Saikat Chattopadhyay, 3 awards, 1 silver, 2 ribbons, and 10 acceptances. This is very good. Members are getting encouraged by such activities, and they are participating more and getting more acceptances and awards and all that. And then Mr. Sopun Chakrabarty's 2 images which got accepted. And Mr. Rakesh Kishore Sahai's 4 acceptances. Mr. Sitanath Paul's It's a 3 new awards. model, sir. Huh? Yes. It's a yes. new model. Mr. Sitanath Pauls got 3 awards and 14 acceptances. Very nice. Then we are having a permanent feature or column, you can say, legendary photographer. The legendary photographers, late legendary photographers who are not with us, and to know and to see their images is a lesson to learn it itself. Sometimes I feel it is unfortunate that in younger generation, they even don't know the names of these past legends. So we thought it will be good to have a column on our late legendary photographers. In this issue, we are having A.L. Sayyed ji. And he is a very, very senior photographer. He was born in 1904 and left for his heavenly abode in 1991. And he was very, very popular photographer. Or he was from Palampur, and in one of FIP convention at New Delhi, his 20 images exhibition was inaugurated by then President of India, Shri late V.V. Giriji. And the camel and the desert, his favorite subject. Iconic images. So these are some of the text by the late legend A.L. Sayyed ji, and some more images. We should know about our history. We should not forget our history. We should not forget the legends of the past of any particular field. That is very, very important. History part is very, very important. So you may go and read about A.L. Sayyed ji, and at the age of 87. And he used to say that whenever I die, you bury me with my camera so that when I go up, I may use my camera over there also. That was the spirit of passion, and that spirit is very, very necessary. And then the photo story, here the theme is atrocity, and atrocities on women. So this is the photo story by Shri Mukesh Srivastava ji. We all know that being physically weaker sex, lot of atrocities are being done on women. We all know it. Very, very unfortunate. But so that theme is shown here with the help of
photographic images, photo story. Men and women are made for each other. There should be a status of equality, but unfortunately it is not there. It should not be like this. So this is the photo story on atrocities on women by Mr. Mukesh Srivastava. Then 25th DCC photo webinar. Yes, on 10th April we have by Uncle Ronnie. And on today we had by Shri Umesh Gognaji. I was spellbound. I went into the flashback. The knowledge of the region is somewhat very special with Umesh Gognaji. And I tell you, he's so cooperative that we used to stop. Sometimes we used to stop the vehicle after 1 minute only and in succession, but he never got irritated. He, being a photographer, we can understand, but he was driving car about more than 3,000 kilometers he drove, and even then, no trace of any irritation or fatigue on his face. So here I would like to thank again Umesh Gognaji for taking 3 of us on this Zanskar trip. It was the dream trip for me, for all of 3. And we enjoyed a lot. We did lot of photography and made some good images, and we enjoyed the place. We all, every artist should be a nature lover, and this is the nature in a different aspect, this Zanskar Valley. And I would suggest every friend photographer to visit this region. And then some photo click by the members of DCC members. This is my 2 images which I recently made on the trip of IIT Roorkee, and 2 images by Barbara Smith, and then Mr. Mukesh Srivastava's 2 images, Mr. Sitaram Paul's 2 images, Sanjay Bose. By seeing others' photographs, we learn a lot. By seeing, we can learn 40 to 50%. So that is very important, to see the images of other photographers. And these are 2 beautiful images by Mr. Biplab Sikdar and Dr. A.K. Jha and Subarna Banerjee's 1 image each. Jyotirmay Yadav, he is from Lucknow, his 2 images. Mr. Ajay Singh's 2 images. Mr. Sagar Parmar's images. Mr. Sopan Chakravarti's 2 images. Mr. Saket Chattopadhyay works. So a lot of images we are able to see. Then he also incorporated paintings made by the members. All mediums of visual are interconnected, I believe, and I think it is true also. We cannot separate it out. So it is a welcome step to include the paintings by the different members. Mr. Paras Srivastav's 2 paintings. Then Mr. Suvro Jyoti's collage and a painting. Madam Rekha Mahesh Hivandikar's 2 paintings. Madam Anupama Sinha's 2 paintings. Madam Nikita Singh's work. And these 2 works are from Anshu Malhotra. And then photo click during the April by CV and GCC members. Kaira Modesty
sent from South Korea. I'm sorry, South Korea. And then Sudeep Roy's 2 images. Chitra Joshi's 2 wildlife images. Ajit Joshi's images. 2 photo images by Vishnu Patel ji. Mr. Deepak Thakur. Ruchira Rudra's 2 images. Sushanta Kumar Das 2 images. And this is the form. If anybody wants to be the having the membership of the Dhanbad Camera Club, this is fill this form and send to the president and be a member of Dhanbad Camera Club if you wish so. And as I said, media coverage is another very, very important thing. And every activity of Dhanbad Camera Club used to get a very prominent place in the local newspapers. Courtesy Mr. Mukesh Srivastava. He's having good rapport and relationship with the media houses. And this is the back page of this e-bulletin. And the page design and formatting is done by Mrs. Ritu Srivastava. So excellent congratulate Dhanbad Camera Club and in particular its president Mukesh Srivastava ji. And now I hand over to Mukesh ji. थैंक्स अ लॉट सर। ये आज बुलेटिन का जिस तरह से आपने रिलीज किया वो देख के और आपके शब्दों को सुन के लगा कि जितना भी हमने परिश्रम किया वो बहुत ही सार्थक हुआ है। बिल्कुल 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 कि whatever time I have spent, really it is worth. Now friends, we are open for question and answers. Let me tell you, Umesh Gugna ji is a wonderful photographer. And the more important that he had been the mentor and brand ambassador of 2 camera companies like Canon and Sony. So technically he is very strong. Aesthetically, we have seen his images. So feel free to ask any question technically or about this presentation today. Feel free to ask him. Over to the members. But he is wonderful man also. Yeah. Man with very big heart and always willing to share. We salute you, sir. We enjoyed your company. इसीलिए बोलते हैं दिल मांगे मोर। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं उमेश जी। जी। सोनी 7R3 है मेरे पास, पर उसे स्विच नहीं मिल रहा मुझे। आपका एस्ट्रो फोटोग्राफी करने के लिए जो टाइमिंग मोड पे डालना है वो कहाँ है, मिल नहीं रहा। ओके ठीक है, तो आपको सबसे पहले उसका फर्मवेयर अपडेट करना पड़ेगा। लेटेस्ट फर्मवेयर अपडेट करिए। जैसे आप लेटेस्ट फर्मवेयर अपडेट करेंगे उसमें इंटरवलोमीटर आ जाएगा। तो इंटरवलोमीटर से आप अपना वो जो टाइमलेस बना सकते हैं। और अभी एक रिसेंट में एक छोटा सा कॉमन सा क्वेश्चन आया था कि बल्ब मोड को यूज करने के लिए कौन सा रिमोट यूज करा जाए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल को उससे अटैच कीजिए। मोबाइल के अंदर एक इमेजिंग मोबाइल ऐप आती है सोनी की, उसको आप डाउनलोड कीजिए और उसको वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगी और उससे डायरेक्टली आप बल्ब मोड को लॉक कर सकते हैं। तो आपका एक्सट्रीम लॉन्ग एक्सपोजर के लिए आप उसको यूज कर लीजिए। अगर आपको 30 सेकेंड एंड मोर एक्सपोजर चाहिए, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, तो आप बल्ब मोड को यूज कर सकते हैं थ्रू मोबाइल ऐप। एंड इंटरवलोमीटर होते ही आपका वो टाइमलेस की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो ये अपडेट कहाँ से करना होगा? सोनी की जो अल्फा मतलब सोनी की साइट पे आप सपोर्ट में जाएंगे, वहां पे फर्मवेयर डाउनलोड हो जाएगा। सपोर्ट में जाके आप अपना कैमरा मॉडल नंबर डालिए, वहां से फर्मवेयर आ जाएगा। और अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो किसी भी सर्विस सेंटर पे जाके सोनी के उसको आप डायरेक्ट खुद भी करवा सकते हैं। फर्मवेयर फ्री अपडेट होता है, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। थैंक यू। सर मुझे एक सवाल पूछने का था। मेरा नाम अजीत जोशी है
हाँ जी सर। Whatever you said just now, is it true for the Canon also? यस सर, मतलब कैनन के अंदर कुछ मॉडल्स के अंदर इंटरवल टाइमर वो देते नहीं है। पहले Yes. सोनी वाले भी नहीं देते थे, लेकिन अब सोनी वाले सभी मॉडल्स में देने लगे हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि हर मॉडल के लिए उन्होंने फर्मवेयर के थ्रू इंटरवल टाइमर निकाला हो। ये सोनी A7R3 में मेरे को इसलिए मालूम है क्योंकि पहले नहीं आता था और अब उन्होंने फर्मवेयर के थ्रू ऐड कर दिए है। नहीं सर, I'm interested in Canon 5D Mark III. 5D Mark III में इंटरवलोमीटर नहीं आता है, नहीं आता है, correct. नहीं आता है। आपको अलग से एक वो लेना पड़ेगा। Yeah. मार्क 4 में और 6D Mark II में आने लगा था, उसके Okay. पहले नहीं आता था। ओके सर, और एक सवाल पूछने का था मुझे। बताइए। Canon 5D के बारे में ही है, बैक हम्म। बटन फोकसिंग है। I always हम्म। set it on the back button focusing, but it goes again to the front side. I mean, it is not getting set up properly. So can you just give me any idea, or we have to go to the service center? नहीं, सर्विस सेंटर नहीं, पहले तो मैं करता था, लेकिन अब क्या पिछले 7 सालों से सोनी चलाते चलाते उसके मेन्यू को मैं भूल गया हूँ। लेकिन होता है, आप बैक बटन जब करेंगे तो उसको आपको डिसेबल करना पड़ता है फ्रंट से। उसको बोलते हैं AF विथ शटर। अगर आप कहीं पे सर्च मारेंगे ना तो AF विथ शटर का ऑप्शन को डिसेबल करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक किसी का क्वेश्चन मैंने पढ़ा था चैट बॉक्स में कि बैटरी चार्ज आप कैसे करते हैं। देखिए, ज्यादातर जगह पे इलेक्ट्रिसिटी होती है, जब भी इलेक्ट्रिसिटी आती है हम लोग अपनी बैटरीज को चार्ज कर लेते हैं। मैं वैसे 2 बैटरी एक्स्ट्रा कैरी करता हूँ, और अभी इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन मैंने अभी इस बार जो मैं अपने ट्रैक पे गया था, तो मेरा ऑलमोस्ट ट्रैक 6 डेज का था एंड 5 नाइट्स का था विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। तो मैंने एक 30,000 मिली एम्पियर का पावर बैंक परचेज किया MI का, और उससे मैंने 3 या 4 बार तो अपना मोबाइल चार्ज कर लिया, एंड करीब 5 टाइम्स मैंने कैमरे की बैटरी चार्ज कर ली। तो वो बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है। 2500 रुपए में आप ले लीजिए। यस सर, प्लीज। उमेश जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, सेकंड ट्रिप पे हम लोगों को कब ले चल रहे हैं? आप मेरे को ये अपना मेरा भी टाइमिंग सवाल है। बताइए, उसके अकॉर्डिंग मैं प्लेस डिसाइड करूंगा। ठीक, ये 3 सीट तो बुक है पूरा, चलेंगे फिर एक बार No, हम sir, भी you're back in. एकदम। You're all back. सर, वापस एक बार मैं पूछना चाहता हूँ। अजित जोशी मेरा नाम है। हाँ, बताइए सर। आपने सर कहा, अभी मेरा ही सवाल था वो कैमरा बैटरी के बारे में। हाँ, आपने बताया कि 3000 मिली एम्पियर पावर बैंक आपने खरीदी किया। 30,000 मिली एम्पियर। सॉरी, 30,000। तो कैन यू जस्ट गिव मी द नेम ऑफ द पैक? MI का है, MI का। MI। हाँ, लेकिन एक आपके लिए एक प्रॉब्लम है कि कैनन का जो 5D Mark III है वो पावर बैंक से चार्ज नहीं होता। ये आजकल के जो मिररलेस कैमरा है वही मोबाइल मतलब पावर बैंक से चार्ज होते हैं। मेरे ख्याल से DSLR कैमरा का किसी का भी बैटरी वो भी नहीं होगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। हाँ, साइकिल जी, आप कुछ पूछ रहे थे? म्यूट है। मैं पूछ रहा था कि 3 में से कहीं और गुंजाइश हो तो मैं भी हूँ इस बार। सर 3 से ज्यादा मैं नहीं ले जा पाऊंगा क्योंकि मुझे मालूम है कभी और नहीं, ऐसा एक्चुअली उसके पीछे नहीं, उसके पीछे का रीजन बता देता हूँ। ऐसा नहीं है, मैं 2 गाड़ियां भी लेके जा सकता हूँ, ऐसे मैं 3 गाड़ियां भी लेके जा सकता हूँ। मेरे पास गाड़ियों की कमी नहीं है, किसी को भी बोलूंगा आ जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एज ए फोटोग्राफर, मैं जिनके साथ जा रहा हूँ ना, मैं फोटोग्राफर बन के जाना चाहता हूँ, ट्रैवल एजेंट बन के नहीं जाना चाहता। बिल्कुल क्या बात है, क्या बात है। और अगर मैं खुद फोटोग्राफी नहीं करूंगा तो मैं फोटोग्राफी को एंजॉय भी नहीं कर पाऊंगा। तो वो लोग जो दुनिया कर रही है वो काम हमें नहीं करना। उसका तरीका यही है कि नेक्स्ट ट्रिप पे चलिए आप। अगर इस बार नहीं है तो अभी जैसे इस बार मेरा जंस्कार में अभी 1 सीट फुल है, 2 वेटिंग में चल रहा है, लेडीज का है। अगर वो नहीं होती तो आप आइए, आप ज्वाइन कीजिए, सितंबर में है। लेकिन आपको इतना अच्छा होस्ट नहीं मिलेगा। इफ यू वांट टू हैव ए परफेक्ट होस्ट एंड गाइड एंड फ्रेंड, तो आप उमेश जी के साथ जरूर जाइएगा, उसको एंजॉय भी करिएगा। एक बार जाएंगे तो बार बार जाने का मन करेगा। यस, दिल मांगे मोर। दिल मांगे मोर। वंडरफुल। मतलब जंस्कार की झंकार सब जगह सुनाई देगी अब। सर खाली जंस्कार नहीं है, बहुत सारी जगह है। स्पीति, किन्नौर भी जब हम करेंगे तो अलग करेंगे, दुनिया अलग करती है। सर हम भी जाना चाहेंगे, मेरा नाम विप्लव है। जरूर विप्लव जी। अभी 2 सीट है ना वेटिंग में।
2 सीट वेटिंग में है, तो उसको आप लोग पकड़ लो। सर आपको तो उमेश सर आपसे बता रहा हूँ सर, आप तो सितारों को लेके जाते हैं, लेकिन हम तो बहुत एकदम पत्थर जैसा है, कुछ सीखना है हमको भी उनसे, जरूर सर, आपसे और आप उनसे जिनको आप लेके जाते हैं। अनिल सर हैं, मुकेश सर हैं, त्रिश कपूर जी हैं। चलिए, एनीबॉडी एल्स वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन, फील फ्री, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। Okay, then now I'll request our secretary Sakat Chattopadhyay to give vote of thanks. उमेश जी, जब आप हमने तस्वीरें दिखा रहे थे तब मैं आपके लिए कुछ लिख रहा था, तो आपको शुक्रिया अदा करूं उससे पहले आपके लिए 4 लाइन मैंने लिखा है। अभी आप जब दिखा रहे थे तस्वीर, तो कि सितारों को जमीन पे उतारा है आपने। वाह वाह। सितारों को, तस्वीर के जरिए सितारों को जमीन पे उतारा है आपने, हमारे दिल के धड़कनों को रोका है आपने। आपको मिलती रहे खुशियां जीवन में, आसमां को करीने से तराशा है आपने। वाह वाह वाह। और वाकई बहुत लाजवाब और बहुत ही बेहतरीन एक शाम गुजरा आपके साथ। और जब हम इस कंप्यूटर के दायरे से बाहर आपसे रूबरू होंगे और खुले आसमान के नीचे मिलेंगे, तो इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत वो शाम होगी। और आगे मैं सबसे पहले आज आपको यहाँ बुलाने के लिए शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे प्रेसिडेंट मेंटर मुकेश श्रीवास्तव जी का, जो आपको हमारे सामने लाएं और हम परिचित हो सकें इन खूबसूरत जगहों से और आपसे। और आज हमारे अनिल जिसाल सिंह सर के साथ साथ जितने भी हमारे वरीय फोटोग्राफर हैं और डीसीसी के जितने मेंबर हैं, और डीसीसी के अलावे भी सीबीए के जितने मेंबर्स हैं, जितने भी माननीय पदाधिकारी हैं डीसीसी के, और जो फोटोग्राफर्स आज की शाम हम लोगों के साथ जुड़े हैं और अपने बेशकीमती समय को साझा किया है हमारे साथ, उन सभी का शुक्रिया। और उमेश जी, सबसे अंतिम में आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हुए ये प्रेसिडेंट को मैं कहूंगा कि आज के कार्यक्रम की समापन की घोषणा करें। थैंक यू। Thank you very much. Kira Modesty, are you here? No. Anyway, next time. So that's all. और ऐसा मौका फिर मिलेगा उमेश जी, अभी तो मन भरा नहीं है। फिर मेरे ख्याल से बहुत जल्दी हम लोग फिर मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे with your new images from different areas, like जैसे आपका स्पीति वैली है, इस सब एरिया का करेंगे हम लोग, ठीक है ना? Sir, Kira Modesty is here now. Yes. Yes, Bhupesh ji, please say something. Umesh ji, wonderful images as expected by everybody. एक मैं बात कहना चाहूँगा कि पूरा लद्दाख का रीजन और वैली ऑफ फ्लावर्स, दिस हैज बीन ऑन माय विश लिस्ट सिंस 1990, जब मैंने 1990 में ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन शुरू किया था तब से। अनफॉर्चुनेटली आज तक मुझे मौका ही नहीं मिला जाने का, लेकिन आपके इमेजेस देख करके वाकई मजा आ गया, बहुत अच्छा लगा, and it has revived my wish to go there more and more. Thank you so much for a wonderful show. Thank you sir, thank you. Thank you भूपेश जी। आप जरूर जाइएगा, जब भी जाएंगे आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। और मैंने भी अभी अपनी एक विश पूरी करके आया हूँ। मेरे को भी तपोवन जाना था, 98 से मैंने सोच रखा था, और अब 2022 में गया हूँ। तो मौके तो मिलते रहेंगे और हम अपनी विश लिस्ट को बढ़ाते जाइए, ताकि अच्छा रहेगा कि कहीं ना कहीं हर साल जाने को मौका मिलता रहेगा। मैं तपोवन लिस्ट कर गया आपका सर, मुझे जाना पक्का था, लेकिन ऐसी फैमिली प्रॉब्लम थी नहीं सर, आश्रम में पहले गए, आश्रम में पहले गए। हाँ, आश्रम में थोड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए आ नहीं सके ऊपर। नहीं, टोटल 5 नाइट्स में से मेरे को ओनली 2 नाइट्स क्लियर मिला, बाकी 3 नाइट्स पूरा क्लाउडी था, पूरा क्लाउडी था। Friends, our next 27th photo webinar is very important, because that is on the post-processing workflow by our Roni uncle, Washington Mehta ji, and that will be conducted on 12th of June, and it's very important webinar, I think, for every photographers who are the either DCC member or CVA DCC members, all will be benefited. Okay, then let us say good night to everyone.
Good night. Thank you, Good sir. night. Thank you once again. Good night, Good night, everybody. sir. Good Good night. Thank you very much. Yeah. Thank Good you, sir. night. Thank you.